when all this was happening, उसके अंदर सबसे ज्यादा ये चीज थी, there were people to help me out, लेकिन मुझे वो हेल्प दिखती नहीं थी कहीं, ठीक है, क्योंकि when you're in the phase, when you're stuck, आपको लगता है you're just stuck, और बाकी सारी जो चीजें हैं ना वो बस चल रही हैं या कुछ हो रही हैं, लेकिन वो आपके उस सर्कल के अंदर एंटर नहीं हो रही. Hello, everybody. Welcome back to another episode of Kavil Kahani, where it is my job to bring out the passionate founders of Pakistan who are either pursuing F&B, apparel business, art business, tech business, coffee business, whatever is their peak. They're pursuing that, they're sharing it with Pakistan, and they are making what we call the new Pakistan. So, one such founder, Amna, who is the founder of Mashkele, I happened to cross path when me and Zoya, you guys know, dressed up and went to a wood workshop. We built our old stools that are sitting there. So between the podcast, I'll sometime go and bring those stools for you guys as well. I cut my own wood. I assembled it. We hammered it in. My wood is still, my stool is still standing. It is amazing and is one of the beautiful chapters in our life. That's when we realized that what Amna is doing with Mashkele is full of heart and soul. The art of the place, we'll put some pictures in the video recording of this podcast as well, was to absolute top class. We met other people in the team; they were fabulous. So we can see all throughout, from the craft that they are doing to the team they are building to the space they have. It's full of passion and soul. So we wanted to bring her story to you guys to show you guys that if you are into arts and crafts or any form of interest you have, how is Amna thinking about it? How do we will go and see how much we can deconstruct Amna's mind, see what is her routine, how many coffees does she have, or how does she start her day, and see whatever tricks and tips she is willing to share. With that, Amna, thank you for taking time and welcome to the show. Thank you so much for having me, Vakas and Priya. And it was an absolute pleasure having you at Mashkule when we met personally. और अभी भी हमारी जब बात हो रही है, it has actually brightened up my day. You guys have that vibe and that energy कि आपका automatically दिल जाता है कि चलें बात करते हैं. आमना, हमने इससे पहले भी बात की थी बिफोर द रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, बट जस्ट अगेन ऑन द रिकॉर्ड वांटेड टू से एंड आस्क एज वेल अगेन, what is the vibe? This is the best background, best studio that has ever anybody who has ever come on the podcast. We love it. So this is not a Mashkule. This is not the studio. This is an extension of Mashkule. We call it the Mashkule home because this is my very dear friend and also one of Mashkule के जो members हैं उनमें से एक हैं मोमिना खाबर ख्वाजा. ये उनका घर है. Oh, and she's very kind enough. I was coming back from my work और मैंने मोमना से कहा, मैंने कहा मोमना आज हमारी वो मीटिंग है और हम लोगों ने वो इंटरव्यू करना है, क्या सीन है. उसने कहा जल्दी से आ जाए. और बस मैं आई और हमने लाइटें जलाई और मैं आके बैठ गई और इट्स आर्टसी से घर के अंदर मुझे आर्टसी सी चाय मिलती है, स्पेशली मेरे मग के अंदर. One thing we absolutely love about what we are saying is New Pakistan, and we always thank you guys for making this New Pakistan, is that you guys are bringing in the soul back to this country by the way you guys design the space, by your own habits, by the things that you're teaching people as well. What is your perspective in that? What was the Pakistan you grew up in a way you were fascinated by the arts and crafts and soul of that country, or it wasn't, or it did it get lost somewhere in the middle? You found it. Take us back into your childhood all the way to your middle years about your journey with art and Pakistan around you. So, being a Pakistani and being born in Pakistan, I not a lot of people know this, लेकिन majority of my childhood I grew up in the Middle East. I wasn't in Pakistan. मैं पैदा पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन मेरा पाकिस्तान से बाहर टाइम गुजरा. लेकिन the association that my family had built with Pakistan was very strong and it was very patriotic. It was to do with the fact I grew up in a joint family system in Pakistan in my early years of time, and when we moved as well, to the core, it was always that you're a Pakistani and Pakistan is home and family and communities come first, और उसके अलावा तो कोई हिसाब किताब और बात ही नहीं है. जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारा कल्चर है, जो चीज़ें हम कर रहे थे वो बाहर जाके भी हो रही हैं. एंड वी वुड विजिट एवरी ईयर और ट्वाइस अ ईयर एंड माई पेरेंट्स वुड इंश्योर कि आपने जाना ही जाना है.
और आपने पूरा पाकिस्तान घूमे, किसी ना किसी तरह हम लोगों ने घूमना है, या कल्चरल इवेंट्स या चीज़ें करनी है. And the Pakistan that I grew up in, and the Pakistan that I held on to while living abroad, was colorful, where everyone cared for each other, जहाँ कोई गेट कीपिंग अपनी चीज़ों की, अपनी रेसिपीज की, अपने रंगों की नहीं करता था. किसी को कोई चीज़ पसंद आती थी तो वो उसको दे देता था वो. एंड इट वाज फुल ऑफ फेस्टिविटीज एज वेल. That was the Pakistan, and that is the Pakistan I grew up in, and that was the definition for me. तो कभी भी anyone who would tell me ना कि growing up, because we grew up in the generation जहाँ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हमारे मुल्क में होना शुरू हो गई थी. तो फॉर मी इट वाज लाइक, हैव यू हर्ड अबाउट द फैक्ट कि जब जिसको कहते हैं कि आपकी व्हेन यू माइग्रेट एज वेल, आपका एक माइग्रेशन सिंड्रोम होता है, जब वो माइग्रेशन वाले टाइम में आप फंस जाते हो. आई वाज स्टक इन द पाकिस्तान दैट आई फेल इन लव विद. मुझे आज भी कोई कहे कि कराची जाना है तो हर कोई कहेगा कि बी सेफ देयर. मैं कहूँगी नो, साहिल समंदर, वहाँ हवा चलती है, वहाँ की खुशबू है, वहाँ आपको रंग रंग के कपड़े मिलेंगे. वहां से मैं हैदराबाद जाऊंगी, मैं चूड़ियां लूंगी, और मेरे लिए ये पाकिस्तान है. दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान वो है जहां आप खड़े होगे, वहां आपको चाय कोई भी पिला देगा. ये तो अब हम कल्चर में देखते हैं दैट इट्स बॉम्बे और ये, दिस इज द सोल ऑफ पाकिस्तान एज वेल. वी ऑल हैव कम फ्रॉम द सेम सोल, जो मेहमान नवाजी और दिल खुला है सबका. वहां वहां आसमान क्लियर है, वहां स्मॉग नहीं होती. मैं तो अभी तक डिनाइल में हूँ कि स्मॉग नहीं होती है. सिर्फ बाहर वाला मौसम होता है हमारे पास. वहाँ फूल होते हैं, वहाँ आप पैकेजेस जाते हो और वहाँ फ्लावर शो होता है, और आप लॉरेंस गार्डन जाते हो. दैट इज द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान फॉर मी, कि आपको दूर से चोटियां दिखना शुरू हो जाती हैं पहाड़ों की, और आप किसी को कहो तो वो आपको अपने घर ले जाते हैं उठा के कि आए, और वहां बैठे हुए आप उसकी किसी घर की चीज की तारीफ करोगे, और वो उसका सबसे कीमती असासा होगा, वो आपको उतार के दे देगा कि आप मेरे मेहमान हैं, ये आर्ट का पीस आपका हुआ. This is Pakistan, and that's the Pakistan that I still hold on to. And मशले उसकी एक बहुत सी छोटी सी चीज है of me trying to build up that Pakistan. So आपने कहा ना कि what is the story, हम लोग अभी बात कर रहे थे what was the story of मशले. I always say मशले is not my story. It is the story of Pakistan, by Pakistan, and for Pakistan to come. So that is what mashale is. Amna, the description that you have given with the examples and the analogies, हमने वो सारा we gonna use it in Kabil in our marketing material, क्योंकि मेरे अपने you like goosebumps हो गए यार, इतना जबरदस्त एक beautiful examples के साथ. And I'll share with you that December May, after completing a year, we took our team on a retreat to Chitral. And the reason we went to Chitral was कि मेरे माइंड में भी पाकिस्तान वही स्टक हो गया है जो कि मेरी खूबसूरत बुक्स में है, जहाँ पे चपली कबाब्स हैं और कल्चर है और कैलाश ट्राइब्स हैं, ये वो. तो हम उसको रियलिटी में देखने गए थे. और चाहे वहाँ पे अभी बहुत ज्यादा अगर बसों में लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, नॉर्मल टूरिज्म जो कि सिर्फ साइट सीइंग के लिए जा रही है, हम लोगों ने वहां जाके कैलाश वैलीज के अंदर गए, और वहां पे एक वही खूबसूरत सी एक आंटी थी, 70-80 ईयर्स की होगी, जबरदस्त सी कैलाश. उनकी जाके बात की, उन्होंने अपने घर में इनवाइट कर दिया. वहां पे जाके उन्होंने हमें उनके घर में बैठे हैं, दे आर गिविंग अस देयर ड्राई फ्रूट. एंड वो वाला वी फेल्ट दैट फैब्रिक, एंड वी वर लाइक यार ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही था हमारी उसके अंदर, हमारी इमेजिनेशन में, और ये बिल्कुल ऐसा था. हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा. एंड मेरे लिए भी, मैं एक ही दफा कराची गया हूँ सही तरह, एंड पता नहीं फॉर सम रीजन सारे क्या कराची वाले कहे थे कराची गंदा ही है. मेरे लिए तो नहीं था गंदा, मेरे लिए तो मेरी फैंटेसी थी. मुझे तो बहुत बहुत खूबसूरत लगती, क्योंकि मेरे माइंड में वो एक बहुत अच्छा इमेज है उसका. एंड रियली लव्ड इट यार आमना, जिस तरह आपने इसको डिस्क्राइब किया. आमना, सो यू वर ग्रोइंग अप इन मिडिल ईस्ट, तो लेट्स से हाई स्कूल या उसके बाद यूनिवर्सिटीज, ये सारा फिर किधर किधर किस किस कंट्री में हो रहा था? एंड वर यू वर्किंग समवेयर एज वेल, कि आप पाकिस्तान किस टाइम पे पाकिस्तान मूव हुए? So it was मेरा हाई स्कूल वाला टाइम सारा मिडिल ईस्ट में गुजरा था सब कुछ, और फिर it was the time कि अच्छा अब हायर स्टडीज के लिए जाना है. एंड एट द टाइम मिडिल ईस्ट के अंदर ना ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है. नाउ मिडिल ईस्ट हैज चेंज्ड एंड ग्रोन, एंड इट्स स्टिल डेवलपिंग एज वेल, एंड इट्स रिमार्केबल द प्रोग्रेस दैट दे हैव डन. हम सब लोगों को उनसे सीखना चाहिए. हम कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स कहते रहते हैं, लेकिन आप देखिए उन्होंने सहरा के अंदर क्या क्या कर दिया है कि आप
शॉक में चले जाते हैं देख के। सो माय पेरेंट्स वर ऑफ द व्यू कि आप लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं इन अ वे, आपने आसानी की ज़िंदगी गुजारी है बहुत सी केसेस के अंदर। यू वुड गो बैक टू पाकिस्तान, complete your higher education there, and then you can go anywhere you want in the world, but it has to be Pakistan first because you have to go back to your roots। और जरा आपको आटे चीनी के भाव पता चले जाके रह के आराम से घर लॉक के बगैर निकल जाना, वॉक पे चले जाना, ऐसी वाली दुनिया नहीं है। आपको स्ट्रीट स्मार्ट भी होना है और सब कुछ होना है। सो उनका उस वक्त बड़ा गुस्सा आता था सोच के कि ये क्यों ये डिसीजन ले रहे हैं, इट्स सो इजी फॉर अस टू गो, यहाँ से आगे चले जाना बहुत आसान है और ये वापस भेजें। नॉट रियलाइजिंग नाउ दैट आई एम गेटिंग ओल्डर विद टाइम, आई रियलाइज कि कल को मेरे बच्चे होंगे, आई वुड मेक द सेम डिसीजन फॉर देम बिकॉज दे न्यू they were sending us back to our roots, क्योंकि उनको समझ आ रही थी कि अब ये बहुत इतने कंफर्ट जोन के अंदर आ गए हैं कि इनके लिए यहाँ से आगे निकलना बहुत आसान है, लेकिन पीछे मुड़ना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो putting us keeping us grounded as well, मेरी एक बड़ी बहन है, उस पहले वो आई थी फिर मैं आई, we did our बाकी की यूनिवर्सिटी लाइफ मैंने अपनी यहाँ गुजारी, और उसके बाद और ज़िंदगी का मौका मिला, फिर मैं बाहर गई आगे पढ़ने के लिए, और वहाँ मैंने काम भी किया और आगे और पढ़ना भी शुरू हो गई, फिर और काम किया। लेकिन देयर वाज दिस बिट ऑफ मी, पहले मेरी बहन जब आई थी और वो बीच में मुल्क छोड़ के गई और वो वापस आई, तो वो कहती थी कि मुझे लाहौर से इश्क है, मुझे वापस आना है। तो सब लोग कहते थे दिमाग वगैरह ठीक है, आप बावली तो नहीं हो गई हैं, ये कौन सा इश्क की बात कर रहे हैं। उस वक्त एक गाना भी नहीं आया था लाहौर से इश्क है तो लाहौर चले आओ, ये भी नहीं आया था, उस जमाने में कहती थी। मैं भी कहती थी क्या बात कर रही है। लेकिन यू नो, लिविंग अब्रॉड, there were pieces of me, I would take up any project in terms of academia or in terms of work, I would root it to Pakistan, और सब कुछ। और मुझे एहसास होना शुरू हो गया था कि you know there is nothing like home and maybe that is home। एंड कुछ जिंदगी का सिलसिला ऐसा बना कि मैं वापस पाकिस्तान आ गई, और उसके बाद बहुत आज तक बहुत ऐसे मौके आए हैं कि आई हैव हैड द चांस टू लीव द कंट्री टू बेटर अपॉर्चुनिटीज टू अदर थिंग्स एज वेल। लेकिन मैं हमेशा वो दुआ मांगती हूँ कि यू नो अगर मेरे लिए बेहतरी है यहाँ रहना तो मुझे रोक लिएगा, और उस वक्त से मैं रुकी हुई हूँ। मशले भी बन गया, मशले शायद बनना था, मेरा वापस पाकिस्तान आना होना था, मेरा पाकिस्तान में रहना होना था, और पाकिस्तान में मैं रहती रहूंगी ये भी होना था। So this was the entire journey, and while we were talking about के आपने भी कहा that you have lived abroad, so I always say that this is privilege। जब आपको exposure दुनिया का मिल रहा होता है, उस exposure के अंदर हम बहुत सी वो चीजें कर लेते हैं जो यहाँ नहीं हो रही होती हैं, मुयस्सर नहीं होती हैं हमें बेसिकली वो। So I had the privilege of attending workshops, of doing art, of doing activities, you know, living life in different ways and different forms as well। And coming back here, I realized कि मैं यहाँ जब वो करने की कोशिश करती थी इतने सालों के गैप के बाद, तो हर कोई कहता था यहाँ नहीं होती, लेकिन at the back of my head वो चीजें तो यहाँ होती थी। मैं सुबह-सुबह अपने ग्रैंड पेरेंट्स और लोगों को देखती थी, वो वॉक भी करने जाते थे, स्ट्रेचिंग भी होती थी, योगा भी होती थी, पार्क्स में लाफ्टर थेरेपी भी हो रही होती थी। दिस वाज़ द पाकिस्तान, लाइक ये चीज़ें हो रही होती थी, पॉटरी भी हो रही होती थी, आप कहीं बैठ के आपको पतंगों पे कलर करने मिल रहे होते थे। सो फॉर मी द कांसेप्ट वाज़ सो एलियनेटेड कि नहीं, यहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं। You need to be an art student, you need to go to a gym to do it। Why would you put someone in a box कि नहीं आपको यही करना पड़ेगा, इस चीज की डिग्री होगी तो आप ये कर सकते हैं, इस चीज की जगह होगी तो आप ये कर सकते हैं, जबकि वो तो चीज कहीं भी कभी भी हो सकती है। Yeah, it's so profound here. I think your perspective there, na, to be able to see through the noise and the chaos, which is very prevalent in Pakistan, उस noise and chaos से देख के अपना एक perspective form करना कि what is really happening here and लोग किस तरह operate कर रहे हैं, and yes, things are happening, but वो बंदा social average of the 5 people से वही believe कर लेता है हर जगह smog है, हर जगह क्योस है, हर जगह नॉइज है, हर जगह एंजाइटी है, वो फिर सोचता ही नहीं है कि नहीं इसके बाद एक और भी लेयर है। आपका in putting all this in timeline, so the further education, the working years abroad, ये सारे किन years में चल रहे हैं, और when was the time that you finally came back to Pakistan like properly?
I came back to Pakistan in 2019. Yeah, so एक साल COVID से, year before COVID, and then COVID happened and the country changed. The year before COVID, COVID happened, and in the same time frame, my life completely changed. The Pakistan and the people that I came from for, सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो नहीं कहते कश्तियां सारी जला के आप आते हो, uh, उसका कंप्लीट बरअक्स मेरे साथ सिचुएशन हो गई थी, और इट शैटर्ड मी इन मेनी वेज। और फिर कोविड आ गया था, वैसे ही हर कोई किसी से कोई मुलाकात नहीं करता था, और ये सारी चीजें हो रही थी। और फिर जब कोविड एंड हो रहा था, बहुत से लोगों के लिए हर कोई कहता था कि हमने ये शुरू कर दिया, मैंने ये शुरू कर दिया, सब कुछ। मैं अपने आप को देखती थी, मैंने कुछ भी नहीं शुरू किया था, जो मैं करती भी थी मैंने वो सब भी छोड़ दिया था। और मैं एक, जितना मैं अभी बोल रही हूँ, एक सांस में मैंने बोला है, आप लोगों को तो उम्मीदें माननी है चीज़ों की, मैं बोलना बंद हो गई थी। आई वॉज द क्वाइटेस्ट पर्सन के, मेरे घर में ना दुआएं होती थी कि दुआएं कर लो, हम टू द पॉइंट कि हम मन्नतें मुरादें मांग लेंगे कि बोलना शुरू हो जाए किसी तरह, कि शी इज गॉन कम्प्लीटली डल, हर लाइफ हैज चेंज्ड कम्प्लीटली और सब कुछ। एंड थिंग्स हैपन इन लाइफ, बट मैंने वो उसको बहुत अपने ना दिल और दिमाग पे और वो कर लिया था, विच इज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमंस यू डू। आपको नहीं पता और समझ आ रही होती है, क्योंकि जिंदगी में आपको हमेशा से कभी नहीं बताया होता कि प्लान ए नहीं वर्क करेगा तो प्लान बी और सी की तरफ किस तरह रॉजर दैट नहीं करके किसी ने आपको बताना, कुछ पता नहीं होता। यू डू नॉट हैव अ टेक्स्ट बुक टू एवरीथिंग। बाय द बुक आप चल रहे होते हो, वो देखे कि इसने ये किया था, मैं भी ये कर लेता हूँ, उसकी जिंदगी ऐसे चली थी, मैं भी इस जिंदगी पे चल लेता हूँ। So it was that frame of mind, or 2019, you come back to a Pakistan with a lot of dreams and hopes in everything, in your professional career, in your personal life, in yourself as well, with the confidence कि मैं बस मुल्क में वापस जा रही हूँ और मैं अपने लोगों के पास जा रही हूँ और मेरे लोग मेरी कदर करेंगे और सब कुछ मेरे लिए सही होगा। And then nothing happens the way you have expected it to happen. Uh, was there a plan in your mind back then as well, coming back कि मुझे XYZ बिजनेस करना है या सर्टन करियर की तरफ जाना है? कोई एक पूरा प्लान लेके भी आ रहे थे जब आ रहे थे पाकिस्तान, knowing Yeah, from the out? मैं मेरा जो बचपन था ना, मैं आई वाज वेल प्रिपेयर्ड हर चीज में। मैंने ना दो, वो नहीं होता कि एक टिश्यू इस पॉकेट में रखा होता है बंदे ने और एक पीछे वाली में रखा होता है कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है, छींक कभी भी आ जाएगी, वो वाला साथ। और फिर आप वो टिश्यू भूल भी जाते हो, वो वॉशिंग मशीन में आपके कपड़े खराब कर देते हैं। सो मेरी जिंदगी ना उस तरह प्लान आउट हुई होती थी वो सारी चीजों की। सो व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान, एट द टाइम आई वाज द फर्स्ट एवर पर्सन to have a specialized degree in digital media and society in Pakistan, और वो मैंने स्पेशली बाहर जाके उस टाइम में की थी वो डिग्री, बिकॉज पाकिस्तान में डिजिटल पहली दफा आ रहा था, like we were transitioning into digital. So I was like कि यार मतलब डिजिटल आ रहे हैं, लेकिन डिजिटल का मतलब किसी को नहीं पता, द प्लेटफॉर्म्स हाउ दे वर्क, उनके स्टैट्स और उनकी चीजें क्या होती हैं। तो मैंने कहा कि मैंने अपनी स्कॉलरशिप भी एक छोड़ी, और मैंने, मेरे अब्बा आज तक कहते हैं इसने वो डिग्री जाके की जिसके अंदर पैसे लगने थे। तो आई वेंट ऑन एंड आई प्रोसीडेड विद माय डिग्री एंड आई केम बैक, और मुझे लग रहा था कि मैं पाकिस्तान का नक्शा बदल दूंगी आके। सो दैट वाज द क्या प्लान। और and it was a very like at that time as well, like it was to do with कि I want to create impact, I want to change things, मुझे bother जो कर रही हैं कि नहीं ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, ये होना चाहिए, it was still very much that. लेकिन there was a part of me who had forgotten कि there are more things in life as well to it. अगर अगर आमना आप 10 कोई 2 दिन लगा के ना अपना 10 मिनट का सेट प्रिपेयर करो ना, आप स्टैंड अप कॉमेडियन को स्ले करती निकल जाओगी। द वे the the way you articulate with the analogies that you give ना, and the style of delivery, वो आपने अपना सेट पे काम नहीं किया हुआ अभी। अगर आपने सेट पे काम कर लिया ना अपने, तो आपको एक और पैरेलल करियर शुरू हो जाएगा, स्टैंड अप हाउ टू बी अ स्टैंड अप कॉमेडियन, मशगले वर्कशॉप सैटरडे 28th of Feb, ladies and gentlemen, show up. I think my friends watching this, जब वो देखेंगे, I would really like to say मेरी जिंदगी में मुझे पहली दफा मेरे दोस्तों ने कहा था, कारे, वफा, हसन, वलीद वगैरह सब लोग देख रहे होंगे, they were like you are made for stand up comedy, तुम सबको छोड़ो, तुम बस ये किया करो। स्कूल यूनिवर्सिटी टाइम में मुझे कहते थे
but I still do not believe it. I feel like मेरी फैमिली के और लोग ज्यादा उनका ह्यूमर अच्छा है ना एनालिसिस के वो साथ. वो जाकिर खान कहते हैं ना कि जब चार दोस्त बैठे हों तो आपके पास इतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हुआ होता है कि एक दोस्त एक एक वर्ड बोलेगा, सारे हंस हंस के कुर्सी से गिर जाएंगे, क्योंकि पहले रेपोर्ट बिल्ड है. लेकिन दैट पर्सन इज नॉट एक्चुअली फनी. द फनी पर्सन इज जो रैंडम 100 लोगों के सामने खड़े होके ऐसा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करता है कि वो सारे उसकी स्टोरी के अंदर घिर जाते हैं, और उसके बाद वो पंच लाइन डिलीवर करता है. देन दैट पर्सन इज स्टैंड, एंड दैट इज एन आर्ट, दैट तो सीखना पड़ता है. तो मेलबर्न में तो बाय द वे स्टैंड अप का आपने भी काफी जगहों पे देखा होगा. मेलबर्न में आई स्टेड क्वाइट 4 years इन मेलबर्न. तो बहुत ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडियन वर्कशॉप्स होती हैं. दे डीकंस्ट्रक्टेड, दे शो यू द एंटायर आर्ट ऑफ इट, ऑफ बिल्डिंग द सीन एंड देन हिटिंग द पंच लाइंस. सो वही मैं कह रहा हूँ, आपने 2 दिन लगा के अपना सेट प्रिपेयर कर दिया ना, वर्कशॉप निकल आनी है मश्क लेके अगली. बस डर ये करते हैं कि हम लोग मिलके करते हैं. डन डन. साइंस इसकी भी बड़ी जबरदस्त साइकोलॉजी. यू हैव द डिलीवरी. So 2020, 2021 happened. Life took a 180 degrees. Looking back at that time in retrospect, if anybody listening is stuck, Tony Robbins call it feeling stuck. Tony Robbins की I think बेटी की podcast भी है, इसकी adopted बेटी है जिसका नाम है, मुझे exactly I might be getting it wrong, और उसका नाम है How to Get Unstuck, around that topic. So if people who are listening, they, and most of them, we run these free master classes, 2000 लोग आते हैं उस पे online, and one of the first question I ask them is like, how many of you, when you look back in 2024, feel that you won the year? How many of you feel that it was an okay year? And how many of you feel that you are very stuck in life and you want 2025 to change it? Stuck is 80%. People are feeling just stuck, and the feeling of stuck is कि आपके the things are not moving like you wanted to move. You don't even have the direction. So आपके experience से 2021 and you feel 2020 2021 या plans नहीं काम किए या you feeling stuck, what helps one, or what helped you get out of it? So when all this was happening, उसके अंदर सबसे ज्यादा ये चीज थी, there were people to help me out, लेकिन मुझे वो हेल्प दिखती नहीं थी कहीं भी. ठीक है, क्योंकि when you're in the phase, when you're stuck, आपको लगता है you're just stuck, और बाकी सारी जो चीजें हैं ना वो बस चल रही हैं या कुछ हो रही हैं, लेकिन वो आपके उस सर्कल के अंदर एंटर नहीं हो रही हैं, आप वहां स्टक हैं उस चीज में. एंड देयर इज समथिंग प्रोफाउंड दैट हैपेंड एट द टाइम. आई रिमेम्बर एक दिन मैं बैठी हुई थी एंड आई सॉ दिस ट्री, और वो मेरे घर के अंदर वो दरख्त था, और उसके पत्ते ना चेंज हो चुके हुए थे, और मौसम चेंज हुआ था, वो चेंज हुआ था. एंड आई लुक्ड एट इट एंड आई वाज लाइक, यू नो, इतने मौसम बदले, सब कुछ हुआ, और सब कुछ, दैट ट्री इज स्टिल देयर, उसकी शाखें भी हिल रही हैं, उसके पत्ते भी हिले हैं, उसके पत्ते झड़ गए हैं, नए भी आ गए हैं, और सब कुछ. उसका जो पूरी रूट है और उसका जो पूरी बॉडी है, वो तो स्टक है अपनी जगह, लेकिन शाखें भी निकल रही हैं, फूल भी आया है, फल भी आया है, वो गिरा भी और सब कुछ. तो जिंदगी तो चलती रहती है, और जिंदगी का चलना बनता है. यू जस्ट नीड टू, आपको रुख बदल के उसको देखना पड़ता है. जिस रुख पे वो शाखें बदलेंगी, वो जो उसका सहराना है, वो उसी तरफ मुड़ना भी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके. ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होने वाला, वो वक्त के साथ साथ ही होगा. एंड आई केप्ट थिंकिंग अबाउट इट. आई डिडंट, ये पहली दफा मैं इस बारे में बात कर रही हूँ. आई स्टिल रिमेम्बर दैट नाइट एज वेल, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने ना अपने आप को जोर से कहा, मैंने ये बात सोची, और मैं किसी को बाहर गेट से एक्चुअली छोड़ने गई हुई थी, समवन हु हैड कम इन टू चेक इन ऑन मी, और मैंने गेट बंद किया. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम. वो शाम थी, रात का टाइम था, और उस वक्त ना स्काई बहुत क्लियर होता था, क्योंकि आपको याद है कोविड के टाइम पे लाहौर का स्काई बहुत क्लियर हो गया था. एंड आफ्टर a few years, for the first time, मैंने एक लंबी सांस ली, and my lungs were full, and for the first time I realized that this is what breathing feels like. और मैंने जब वो अपनी सांस छोड़ी ना, I looked at the sky and I could see the stars as well. और मैंने कहा कि ये मतलब एकदम से क्या हो रहा है, कि मेरी टांगें थोड़ी सी शिवर हुई, मैं नीचे हुई, मैंने कहा what is this that has happened. मतलब ये कोई सुने वो कहेगा वो कहानियां मार रही है, कहानी सुना रही है कुछ. But you know, there are things in your life that happen जो आपको आगे जाके, मैंने उस वक्त इसको बड़ा एक नॉर्मल सी चीज ली, और मैं आगे चली गई, मैं लेट गई जाके और सब कुछ. And that is the feeling of stuck. You know, when you're feeling stuck, just look around. कोई ना कोई चीज हरकत में होगी. That's how the world is made. वो एक जगह रहने के लिए नहीं है. वो आप
कोई पत्ता उठा लो, कोई आसमान देख लो, एज किड्स हम लोग कहते थे बादल यहाँ से शुरू हुआ, हम भी चल रहे हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं, वो साथ साथ चल रहे हैं. दैट इज लाइफ शोइंग यू अ डायरेक्शन. वो आपके रिस्क के फॉर्म में आपको या तो दिख रहा होता है, वो आपको लोगों की शक्ल में दिख रहा होता है, और आपको मांगना पड़ता है. यू नीड टू मैनिफेस्ट इट. कि क्या यही है? आस्क द एग्जिस्टेंस व्हाट एवर यू बिलीव इन, आस्क देम क्वेश्चंस के क्या यही है, इसको मेरी तरफ ले आए, आकाश इंसान मुड़ जाए, मुझे इशारा मिल जाए, ये चीज आ जाए. एंड आई वुड हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद इन मी. आई वुडंट टॉक टू पीपल अबाउट इट और सब कुछ. एंड व्हेन आई हैड दिस कॉन्वर्सेशन विद मी, आई स्टार्टेड टू फील लाइक कि वो जो स्टकनेस थी ना, वो थोड़ी सी मैं वहीं थी, लेकिन वो स्टक के साथ वो नहीं होता कि गाड़ी की गियर होती है या एक बाइक का इंजन, और आप कोशिश कर रहे होते हो कि उसको आप स्टार्ट कर रहे हो, वो हो रही है और फिर बंद हो रहा है, फिर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हो रही है स्टार्ट, या एनर्जी है उसके अंदर बाकी है. एंड आई वाज लाइक दिस इज हाउ लाइफ इज. आपको वो चाहिए. यू आर नेवर स्टक, ट्रस्ट मी. आप वो मोमेंटेरली चीजें होती हैं आपके साथ, एक्सेप्ट देम, बिलीव इन देम कि हाँ हो गया, ठीक है. वो कहते हैं ना कि ग्रीफ एज मच एज यू वांट. आप अफसोस करो जितना करना है, दिल हल्का करो, सब कुछ करो, और फिर देखो आगे व्हाट्स नेक्स्ट टू डू. बिकॉज इन दैट टाइम व्हेन यू आर स्टक ना, थिंक अबाउट इट, that there's a plan out there of opportunities, that you'll be sitting on a table with people you do not know, an opportunity you do not know about. There is a door waiting for you that has not been knocked by you, but it is there. There are people you will meet and will become the most beautiful part of your life that you have never even met right now. So जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, you wouldn't just meet them कि मैं स्टक हूँ भाई, और आप लोग मेरे लिए दरवाजा भी मेरे सामने लाएं, वो लोग भी लाएं, और सब कुछ. एफर्ट तो आपको हर हाल में ही करनी होगी, वो आप थोड़ी सी करो या ज्यादा करो. एंड दैट स्टकनेस, एंड व्हेन दिस एंटायर थिंग हैपेंड, the entire story of this is कि उसके कुछ दिनों के बाद I would go to therapy frequently as well, because I say this, I'm a firm believer of therapy. I found a really good therapist. Please, people, find therapists for yourself. No matter what age or what you're going through, everyone needs a therapist, an unbiased approach to life. So I would tell my therapist, I can't, मुझे ख्वाब नहीं आते, और मैं वो इंसान थी जो डे ड्रीमिंग करती थी. आई एम अ होपलेस रोमांटिक, आई स्टिल एम. और मैं डे ड्रीमिंग कर रही हूँ, और वो मुझे होता था कि अच्छा, मैं अपने दिमाग में यहाँ से यूं हवा गुजरी और बारिश पाइप से हो जाए मेरे लिए, मैं खुश हो जाऊंगी, ठीक है. दैट वाज माय एंटायर लाइफ. मैं बचपन में, अब सोचती हूँ मेरी बहन मुझसे बड़ी है, आप सोचें, मैं उसको पाइप पकड़ा के खड़ा करती थी और कहती थी तुम बारिश करो, और मैं दुपट्टा बांध के ना घूमती थी, और मेरा ड्रामा पूरा हो चुका होता था. लाइक दिस वाज माय लेवल ऑफ बीइंग अ होपलेस रोमांटिक और ख्वाब देखना. So I was like, I have stopped dreaming. It has been like 3-4 years. I haven't dreamt of anything. मुझे कोई ख्वाब ही नहीं आता, या वो याद नहीं रहता. And as physicians, as doctors, वो लोग कहते थे नहीं ख्वाब आते हैं, लोगों को याद नहीं रहते. मैं कहती थी नहीं, there's something missing in my life. मुझे नहीं ख्वाब आते हैं, और ये वाली चीज. And all of a sudden, आई रिमेम्बर मुझे एक ख्वाब आता है, और उसके अंदर बहुत ही फनी बात है, लेकिन आपने वो देखा हुआ है, ये इमोजीज के अंदर हमारी एक ब्लू बटरफ्लाई होती है, देखा हुआ है, राइट? बिल्कुल देखा हुआ है. तो उस तरह की एक बटरफ्लाई थी, एंड दैट बटरफ्लाई जस्ट, वो बटरफ्लाई घूम रही है मेरे आसपास ख्वाब के अंदर. आई वाज लाइक व्हाट द हेल. मैं उठी, मैंने कहा मुझे ख्वाब आया और एक तितली थी और ये सब कुछ. बिलीव मी और नॉट, वकास एंड फरिहा, दैट डे, इट्स बीन 5 years सिंस दैट ख्वाब. टिल डेट, एवरी टाइम आई थिंक अबाउट, मैं परेशान हूँ जिंदगी में, या कुछ, मैं रिंग रोड में हूँ, मैं किसी सहरा में हूँ, मैं आसमान के अंदर हूँ, जहाज में कहीं जा रही हूँ, और मैं कहूँ कि अल्लाह ताला या whoever there is, प्लीज मुझे इशारा दे दें, या मैं लो फील कर रही हूँ और मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, आई वुड सी अ बटरफ्लाई, और शायद वो किसी को नहीं दिख रही होगी, वो कहेंगे कहाँ. एंड देन अ फ्रेंड ऑफ माइन, अस्मा खाबर ख्वाजा, उसने एक दफा मुझे कहा कि शी वाज रिलेटिवली, उससे मेरी कुछ अर्सा पहले दोस्ती हुई, बट शी इज वेरी क्लोज टू मी, शी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, माय फैमिली मेंबर्स. उसने मुझे कहा, कहती है कि इट्स सो वियर्ड. उसको इस स्टोरी नहीं पता थी. हम लोग लॉरेंस गार्डन में बैठे हुए थे आज से 3-2 साल पहले, और उसने कहा तुम जहां जाती हो वहां तितली आ जाती है कोई ना कोई, एंड दे आर बटरफ्लाइज, इट्स सो वियर्ड. और उसने बात खत्म की, एंड इट हिट मी दैट हाउ अनग्रेटफुल आई हैव बीन टू लाइफ, कि देयर आर साइंस ऑल अलोंग that I've been missing out, that I'm not stuck anymore, and even if I am, there are signs there leading my way.
in terms of people, in terms of things. अगर आपने मशले की वो blue वाली wall देखी है, उस पर बड़ी तितलियां बनी हुई हैं. That is the reason there are butterflies on it. Because of that thing कि मुझे वो तितली नजर आई थी. And आमना. it was a fact as well that, you know, अगर आप किसी butterfly को देखो, उसका जो life process as well, वो अगर stuck भी होती है ना, वो कोशिश करती है अपने पंख हिलाने की, और वो उस जार में से, उस चीज से निकलने की कोशिश करती है. There's always a way when there's a will. Yeah, Amna, Faria and I too can listen to your entire day. The way it's so profound, and the way you articulate the story and the experiences that you have had. I mean, from all of us, thank you so much for sharing it in so much detail. And definitely, the words that you have said, and all the people who are listening, reading it in a case study. Uh, I hope that whatever Amna said, you just made notes and you have put in the action. Step Amna ne kaha ki move. Movement, just keep something in the universe is moving. You're never stuck. If therapist is required, Amna completely advocates that if you once you find your match, it would be really good. In sports, guys, like I've been a sportsman all my life. Sports आप खेल ही नहीं सकते with a coach. At a certain level, आप गली मोहल्ले में बेस्ट हो जाते हो. जैसे ही मैंने क्लब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में खेली है, वो कोच आके मुझे सीधा कर देगा कि ये एक्शन इधर से टेढ़ा क्यों है, इधर से ऐसे क्यों है. So if you can't play sports without a coach, so I think life is a great sport to play, and you need coaches in life as well. You do. आमना, You do. दो कोट्स थे जो मैंने भी कोविड के अंदर अपने वॉलपेपर पे ऐसे आधे आधे लगा दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा काफी बड़ा मैंने एम्पायर बनाया था 2017 से 2020 के अर्ली तक इन टर्म्स ऑफ माय ऑनलाइन प्रेजेंस. एंड मैं तो उस वक्त 30 पता नहीं 25 कंट्रीज घूम चुका था, गिविंग टॉक्स अराउंड. कोविड ने सारा कैलेंडर कैंसिल कर दिया. अगला साल सवा साल के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गए. आई वाज लाइक यार ये मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उसके लिए वो बॉर्डर्स बंद हो गए. कुछ जो मेरे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स थे उसके लिए पीपल के ट्रेवल एंड मूवमेंट वाज इंपॉर्टेंट. तो लाइफ केम टू अ स्टैंड स्टिल इन अ वेरी बैड वे. सो उसके अंदर दो कोट्स थे. एक था डेल कार्नेगी का, इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, या how to stop worrying and start living, the author of these two books. And that quote is, inaction breeds doubt and fear, action breeds confidence and courage. And every day I was like, what is the, जब आपको लग रहा हो ना, like, guys, anybody who's listening and watching as well, जब आपको लग रहा हो कि यार डाउट एंड फेयर आ रहा है, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे से ये होगा नहीं, क्योंकि वो जर्नी इतनी बड़ी होती है कि वो एक्चुअली डाउट एंड फेयर क्रीप इन कर जाता है. लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट वॉकिंग, आप एक रील बना के डाल देते हो, या आप एक जिम का सेशन कर लेते हो, या थोड़ा सा आगे चलते हो, सडनली कॉन्फिडेंस एंड करेज आने लग जाता है. बोथ आर इमोशनल स्टेट्स. Actually, there is no objective quantity as doubt and fear, and no objective quantity as optimism, confidence and courage. It's both are the emotional states, and based on which emotional state mein ho, life will seem very different suddenly. एक में life will feel very stuck and यार कुछ नहीं होगा, और एक में life will feel यार सब कुछ ही हो जाएगा, we're gonna win the life. And second was attributed to Rumi. Like most of the quotes are these days attributed to Rumi. So it could not be Rumi at all. But let's just, for the sake of this conversation, say that it is Rumi who said, as you start to walk on the way appears. And the same thing, नहीं नजर आ रही होती जगह, लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू होते हो, एक सर्टन तरफ जाने लग जाते हो, आप अपना पहला, आप सोचते हो कि यार मुझे फ्राइज का स्टॉल ही खोलना है. आप फिर क्रम्बल को स्टडी करते हो, आप जाके देखते हो फ्राइज कहाँ से मिलेंगे. जहां से आप देखना शुरू होते हो फ्राइज कहाँ से मिलेंगे, तो अगला स्टेप खुल जाता है, ओ सॉसेस भी तो चाहिए थी, वो वहां से मिलेंगी. फिर जब वो आ जाती है तो पता चल जाता है कि रेंटल कॉस्ट क्या है, फिर सोशल मीडिया कैसे बनाना है. तो जैसे जैसे आप चलना लग जाते हो, तो द वे स्टार्ट्स अपीयरिंग. सो एज यू स्टार्ट टू वॉक ऑन द वे अपीयर्स. जब घर बैठे हुए पूरा प्लान बन ही नहीं सकता, क्योंकि वे ही नहीं नजर आ रही होती. Yeah. Amna, with that, when did the mashkile started forming in your mind? So a part of मशले वो हमेशा से कहीं ना कहीं था. Like मैं कभी ना कभी कह देती थी, I would want के, you know, I would want to have, मैं एक इंस्टीट्यूशन खोलना चाहती हूँ जहाँ लोग आके ना चीजें सीखें. मैं ग्रूमिंग उनको सिखाऊंगी, और इस तरह की चीजें. सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली, वहाँ ना बहुत वो था कि यू हैव टू ड्रेस प्रॉपर्ली, यू हैव टू बी लाइक टाइड अप हेयर. अभी भी मैं ऑफिस के लिए जितना मर्जी लेट हो रही होती हूँ ना, मेरी अटेंडेंस भी अगर लेट हो रही हो या कुछ, मुझे इतना वो खौफ आ रहा होता है, नहीं बाल बंधे हुए सिमटे हुए जाने हैं, ठीक है. वो यू, व्हेन यू आर बॉट अप इन अ सर्टेन वे, आपकी वो कुछ हैबिट्स बन जाती हैं.
कि आपको याद आ रहा होता है अम्मी नहीं करती हूँ करके दांतों को अपनी कर रही होती हूँ, फिर आपकी ना शक्ल से याद आ रहा होता है कि ऐसी की तैसी। सो वो चीज़ हमेशा से थी दैट आई वांटेड टू बिल्ड अप अ स्पेस और सब कुछ। लेकिन आई नेवर थॉट ऑफ लाइक कि मैं कर लूंगी या कुछ। मुझे होता था एंड आई आई यूज्ड टू थिंक बिग। मतलब मुझे ना मजाक में स्कूल में लोग कहते थे कि बेनज़ीर आ गई है। आई हैव अ लाउड वॉइस और मेरी एक्साइटेड फेस है, तो कहते थे बेनज़ीर आ गई है, बेनज़ीर आ गई है। तो ना मुझे अक्सर ना गुस्सा भी आता था, मैं कहती थी मुझे बातें लगाते हैं कि बेनज़ीर आ गई और सब कुछ। बट कहीं डीप डाउन ना आई वुड बी लाइक कि यू नो आई I would be also something, the first Pakistani woman to do something. She was the first prime minister. मैं भी ना ग्रीन कलर के कपड़े पहनूंगी, वाइट मेरा हेड स्कार्फ होगा, वाइट दुपट्टा होगा, और मैं भी कोई अवार्ड लूंगी पाकिस्तान के लिए और सब कुछ। एज अ चाइल्ड आप मैं अपनी वो होपलेस रोमांटिक चीज़ों में ये भी सोचती हूँ, चीज़ें थी उस वक्त। And then growing up or sab kuch, how Mashale came into being was that when I was seeking help and looking for help, वो हेल्प जो थी ना जहाँ से मुझे उम्मीद थी बहुत जगहों से, वो वहाँ से आ नहीं रही थी, और ना वो मेरे अंदर से आ रही थी और सब कुछ। एंड जो आपने बात की थी ना द पाकिस्तान, आई आई वेरी अप्रिशिएट दैट यू नो यू सेड इट, बिकॉज इट इज व्हाट हेल्प्ड मी गो विद मशले एज वेल। बिकॉज आपको याद है बचपन में फिर वकास आप लोगों ने सुना होगा कि जाओ साथ वाले घर से चीनी ले आओ, अंडे ले आओ, या कुछ बना है उनको साथ वाले घर पे दे आओ, ठीक है। खाने की खुशबू अगर दूसरे के घर से लीजिए तो उसको वो प्लेट भी जाएगी, उसके ऊपर वो कपड़ा डलता था और जाता था। कोई बीमार हो गया तो उसका सब ख्याल रखने आ जाएंगे, या कोई इस तरह की चीज होगी। There were people there to help me, but they didn't know what to say, how to help me, because the sense of community had been long gone for them as well. उन लोगों को नहीं पता था कि मुश्किल वक्त में साथ किस तरह देना है, खुशी में साथ किस तरह। खुशी में हर कोई आ जाता है, लेकिन वो मुश्किल टाइम होता है आपकी जिंदगी का। आई वाज लाइक व्हाट द हेल यार, मतलब दिस इज सो, मैं दिमाग में सोच रही होती थी, बोल मैं नहीं रही होती थी, लोगों को लग रहा होता था दिमाग भी इसका नहीं चल रहा। मैं कह रही होती थी दिस इज सो सिंपल, आपको ये कहना चाहिए, आपको ये कर देना चाहिए इस इंसान के लिए। लेकिन इट वाज दैट, एंड देन friend and a former colleague of mine who came into my life magically, he was the only person, Irtaza Rahman, he was like, no, you can do it, and we'll do it or सब कुछ। And he started off with this entire conversation and how and his wife came up together और सब कुछ। वो नहीं होता कि कभी कभार अल्लाह ताला को पता होता है कि आपको उन लोगों की जरूरत है और सब कुछ, एंड सब कुछ बस होना शुरू हो गया, क्योंकि वो एक होता है ना कि दिमाग में आ चुकी हुई थी वो बात, एग्जिस्टेंस में वो आ चुकी हुई थी, दैट वाज सपोज टू हैपन। और जब मशले हुआ तो इवन देन आई वाज इन डाउट, जब इर्तिजा ने कहा कि अच्छा नहीं ये सब कुछ हो रहा है और ये सारी चीजें कर रहा है, हो रही है और सब कुछ, एंड दिस इज योर्स नाउ और सब कुछ, एंड आई वाज लाइक नो नो नो, दिस माइट नॉट वर्क, पीपल वोंट कम एंड एवरीथिंग, not realizing that this was a very selfish thing for myself, that it started to heal me. I had built the first ever community of Pakistan, a safe space, so we decided कि जो चीज हमारे लिए नहीं है, जो हम ढूंढ रहे हैं, हम वो खुद ही बना लेते हैं अपने लिए। कुछ ना कुछ तो करना है ना, सो लेट्स मेक इट फॉर आवरसेल्फ। और आप यकीन जाने ऐसे मैंने हम लोग कॉन्वर्सेशन में प्रिविलेज प्रिविलेज कर रहे थे, तो जो ये लोग सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत प्रिविलेज है, पैसों के हिसाब से प्रिविलेज कर रहे हैं। बीइंग प्रिविलेज कम्स इन वेरियस forms and ways, ठीक है। You're privileged enough when you have a roof over your head to sleep as well. You have washed laundry जिससे खुशबू आ रही हो और आपका पहन के आपको nice. You're privileged enough when people come together for you as well from places, and प्लीज आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। आपको नहीं पता होता आप कितनी लोगों के अंदर काइंडनेस होती है। असल में अनफॉर्चुनेटली वी हैव फॉरगॉटन द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी एंड काइंडनेस। लोग मदद करना चाहते हैं आपकी, और उनको भी वो मदद चाहिए होती है, तो वो सेल्फिश रीजंस के लिए भी आपकी मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। बट इट इज फाइन, this is what communities are built on, this is what communities are like. So that's how Mashale came into being, और Mashale शुरू हो गया with no absolute no capital, no money at all. I come from a marketing, advertising and communication specialist background. मैं उसी में काम कर रही थी, अभी भी उसमें करती हूँ सब कुछ।
And I told myself and I told people around me, just remember and keep reminding me that Mashale is just there to give back to the community and build communities out of it. It's not a personal gain ya kuch. The only personal gain is that it refreshes me every time. It gives me hope. I look at it. So that's how Mashale came into being, and people who trusted me out of home as well, and who stood by me, जिनको मैंने एक आवाज दी कि ये करना है, they put in all their effort and energy into it. आप मशरूले आए हुए हैं, आपने देखा हुआ है, जो जिस घर में अभी मैं भी बैठी हुई हूँ, कि जब आपको कम्युनिटी मिलती है ना, कोई नए घर में शिफ्ट होता था किसी के घर, तो वो उसके घर नेबर्स मदद करने आते थे, आपको हेल्प चाहिए शिफ्टिंग के अंदर, अच्छा आपका आज का खाना हम देंगे, कल का ये दे देंगे, वो एक कम्युनिटी होती थी, ठीक है, कोई चीज हम ला देंगे, कोई चीज. For the longest time, I had stopped seeing that. नफ्सा नफ्सी का, and especially in COVID ना, आपको true नफ्सा नफ्सी का meaning पता चला था कि people were so scared to go close to each other, और ये सारी चीजें, selflessness खत्म हो रही थी और सारी चीजों के अंदर. A lot of relationships fell apart because of this as well. And then Mashale, उसने वो सेंस ऑफ होप इतने लोगों को दी दैट मोमिना, जिसका मैंने आपको बताया, जिसका एक कमरा भी है, जस्ट इमेजिन मशले में 2 सोफे पड़े हुए और भी बहुत सी चीजें हैं. हर मॉम नॉट नोइंग मी एट द टाइम एज वेल, शी वाज लाइक, ये मेरी जहेज की चीजें पड़ी हुई हैं, ये मशले ले जाओ, ठीक है. मतलब आउट ऑफ नो वेयर पीपल स्टार्टेड टू ब्रिंग इन थिंग्स, कि ये मैंने देखा, ये मैं ले आई, या ये मैं ले आया, और सब कुछ. एंड दीज पीपल आई नेवर न्यू देम इन लाइफ, ठीक है. उन लोगों को लगता है ये तो बचपन से शायद इनको जानते हो गया कुछ. नो, इट वाज द सेंस ऑफ कम्युनिटी, बिकॉज दे मिस्ड इट एज वेल, कि वो चाय का कप किसी के साथ शेयर कर सके. इफ यू कम टू मछली, देयर विल ऑलवेज बी टी, कॉफी, ग्रीन टी, पानी ऑन द हाउस, क्योंकि अ सेफ स्पेस, कम्युनिटी का मकसद ये है कि सूखे मुंह वापस नहीं जाना. आपके लिए चाय हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, आपकी पानी और ये सारी चीजें, इट्स राइट देयर एट योर सर्विस, कि आप बनाएं, आप पी लें, इवन खुद बना लें, अगर हम नहीं है खुद बना के पी लें, कोई मसला नहीं. This is what communities were all about, that if you're Yeah. feeling low, someone will come up and they will buckle you up. So that was the true essence of Mashkile, Yeah, which this still is is, and all. I hope. Yeah, this is all music to our ears. I can't tell you, like, this talk of what is an anti-social media, anti-lonely, anti-individualistic life to a community life, and seeing everybody who has experienced that, what it does to that people is the single most I think important thing out there. And we experienced that first hand. हम गए थे नॉट नोइंग एनीबडी, और हमारी वर्कशॉप के टाइम पे एक और कपल आया हुआ था हमारी तरह का, एक मॉम एंड डॉटर आई हुई थी. रफली ये मेन था, और इसके अलावा जो आपके कारीगर थे, मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन कारीगर थे, और फवाद. हाँ, कामरान भाई एंड फवाद. बाय द टाइम ये 2 घंटे या 3 घंटे खत्म हुए थे, इट हर कोई, हम मतलब वो पाई इन द स्काई सामने ही है आपके फेस 5 वाले में, वहां से जी सिनेमन स्टिक शेयर हो रही हैं, बिस्किट शेयर हो रहे हैं, चाय कॉफी खुली चल रही है, एंड एवरीबडी मेड फ्रेंड्स, नंबर चेंज हो रहे हैं. और कामरान भाई जो कि मतलब कामरान भाई वो, हमारे घर में कई दफा वुड वर्क होता है तो कारीगर आते हैं, कर जाते हैं, आपको नहीं पता होता. कामरान भाई एक्चुअली फेल्ट लाइक यार ये तो फैमिली मेंबर है, जो आपको ऐसे पकड़ के सिखा रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे पकड़ना है. और उसके बाद ही स्टेड इन टच, वो अभी भी इन व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर देते हैं कि क्या कर रहे हैं. और उनकी वजह से मेरे घर में उसके बाद जो भी कोई काम हुआ है, मैं उन लोगों के साथ भी दोस्ती करके बैठा होता हूँ अब, क्योंकि अब मुझे एक डिफरेंट वाइब आती है कामरान की वजह से, कि यार ये लोग बहुत, इनको बड़ा शौक होता है बताने का, एंड हाउ दे टीच यू एंड यू गेट टू लर्न. तो वो एकदम से वो एक इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ जो स्क्रीन के सामने ही होनी चाहिए थी. पहले तो आई कैन ऑलरेडी टेल यू एवरी वर्कशॉप ऑफ यू बिकम्स अ थेरेपेटिक सेशन फॉर एवरीबडी. इट इज द बेस्ट डिटॉक्स. हम अपने स्क्रीन पे नहीं टाइम गुजारते, सोशल मीडिया पे, हम वहां पे जब होते हैं तो इट फील्स लाइक, पता नहीं, क्योंकि वो इमोशंस ही अलग होते हैं. वो आई थिंक कम्युनिटी के अंदर ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा होता है, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आ रही होती है, तो थोड़ा सेरोटोनिन भी निकल रहा होता है कि यार मैंने कुछ बनाया है, कुछ अचीव किया है. सो वो जो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन का जो मिक्सचर है ना, वर्सेस द डोपामीन जो मिल रहा होता है नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और स्क्रीन से, वो इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है बॉडी के लिए, कि जब वो आप एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर वो बॉडी कहती है यार दिस वाज टू गुड. वो पूरा दिन, उसके बाद हम Yeah. डबल शॉट गए, वहां पे हमें कोई और कपल मिला, हम उसके साथ गप्पे लगा रहे हैं, फिर हम कहीं और चले गए, उधर गप्पे लगा रहे हैं, क्योंकि वो इस सुबह सुबह 10 से 12 के बीच में इतना हाई हो गए थे ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन पे, कि अब तक पूरा दिन एंजॉय कर रहे थे उसके बाद.
that is actually how life is supposed to be. ठीक है, क्योंकि so the entire concept of मशले is that जब ये सब कुछ हुआ था ना उस टाइम के अंदर जो सेंस मेरी सबसे ज्यादा खत्म हो गई थी क्रिएटिविटी की, I thought about it. I was like कि अगर वो खत्म हुई है किसी वजह से तो उसका रिवर्स भी इफेक्ट हो सकता है. ठीक है, doing it will also reverse it as well. So there needs to be a start to it. So we came up with workshops के each and every workshop that happens at Mashule उसके अंदर आपके हाथ यूज होना बहुत जरूरी है. Your sense of touch, your sense of sight, your sense of smell, all your senses किसी ना किसी तरह वो होना ज़रूरी है ताकि आपको वो फीलिंग आए. बिकॉज़ जो हमारा जिस एज में हम लोग रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली पता है दुनिया में कुछ भी होता है ना वो उसके अंदर ट्रांजिशन होते हैं. हमारे पास कोई ट्रेंड आता है ना उसके अंदर ट्रांजिशन नहीं होते, हम उसको समझते नहीं है, हम उसके अंदर वी जस्ट फॉल इनटू इट एंड देन इट बिकम्स अ ट्रैप फॉर अस. सो इट्स विद दैट एज वेल. स्क्रीन्स आई, हमने स्क्रीन्स को स्वाइप करना शुरू कर दिया. हम आप पिक्टोरियल मेमोरी हमारी माशाल्लाह कौम की इतनी है, हमारे लिटरेसी रेट के हिसाब से अगर आप किसी से कोई बातचीत करेंगे वो आपको फौरन बता देगा इस वाले आइकन को छोड़ेंगे तो एक गाने वाली ऐप बजेगी और सब कुछ होगा, उसका नाम एक्जी है और ये सब कुछ होगा. ठीक है, आई डोंट वांट नेम एप्स और एनीथिंग. तो आप सोचें अकल है ना, सारा कुछ है आपके पास. ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उसको ये नहीं सोचा कि वो क्यों यूज हो सकती है या कुछ. हमने ट्रांजिशन कर लिया, बाकी सब भी उसमें ट्रांजिशन हो गए. सो विद मशले व्हेन यू यूज योर हैंड्स एंड ऑल योर सेंसेस, आपकी ऑटोमेटिकली ऑल द केमिकल्स जिनका आपने नाम ले लिया है बहुत अच्छे तरीके से, जिनको आज तक मैं सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर सकी हूँ, दे जस्ट स्टार्ट टू रीजनरेट in your body as well. So when you're depressed or when you're having a bad time, the feeling of being stuck, उसके अंदर सबसे पहले ये चीज होती है कि आपका बॉडी इस तरह की बनी हुई है, योर ब्रेन इज द लास्ट थिंग टू स्टॉप वर्किंग बाय द वे. ठीक है, उस तरह लाइक सो सबसे पहले अगर आप अल्लाह ना करे कभी किसी को देखें, सबसे पहले कहते हैं कि अच्छा ऑर्गन्स फेलियर शुरू हो रहा है बट ब्रेन डेड अभी वो इंसान नहीं हुआ और उसका हार्ट भी चल रहा है. ठीक है, फिर आता है कि ब्रेन डेड हो गया लेकिन द हार्ट इज स्टिल बीटिंग, और ये सारी चीज होती है. सो व्हेन यू आर गोइंग लो एज वेल एंड गोइंग डाउन एज वेल, आप कभी देखिएगा कि जब मूड खराब होता है सबसे पहले सुस्ती चढ़ती है और आप कहते हो यार कुछ नहीं करना और आप बैठ जाते हो. लेकिन the only thing working, the only two things that are properly working that you can feel, ठीक है, बाकी तो हम उसकी कदर ही नहीं करते ना कि किडनी चल रहा है, लिवर चल रही है और सब कुछ. इज योर ब्रेन जिसके अंदर वो सारी गलत सोचें आ रही होती हैं कि क्यों हुआ और ये क्या हुआ और उसने क्या कहा था और इसके साथ अब मैं क्या करूंगा या करूंगी, और ये सारी चीजें आ रही होती हैं आपके दिमाग में. और आप सबसे सैडेस्ट गाना लगा के अपनी जिंदगी को और मायूस सुनते हैं, काबिश सुन सुन के अपने आप को कहते हैं बस अली जाफरी तुमने मेरे लिए गाना लिखा है. और आप उसके बाद यू स्टार्ट टू फील द एंजाइटी इन योर हार्ट एज वेल. आपकी बॉडी और पैल्पिटेशंस शुरू हो जाती हैं, व्हिच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग इवन व्हाइल फॉलिंग सिक एज वेल. जबकि उसका रिवर्स अगर आप देखें, आप उसी वक्त कोई चीज पकड़ लें, स्टार्ट कलरिंग और स्टार्ट वॉचिंग समथिंग इन द नेचर, और वो ऑपोजिट रिएक्शन में चलना शुरू हो जाएगा. आई एम नो थेरेपिस्ट, आई एम नो डॉक्टर और एवरीथिंग. I've learned this while working with people. So Mashale also has a board of therapists who help us design those workshops as well. तो जब ये सब कुछ हो रहा था और जब ये workshops बन रही थी, I started to realize कि यार ये सब कुछ तो हो रहा है, इसमें कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो ट्रिगर भी कर सकती हैं आपके ट्रॉमा रिस्पॉन्सेस को या किसी भी चीज को. So these therapists then told us that how and why these creative workshops are now important as well और उनकी ज़रूरत है. So then we were the first ever creative studio, not only a creative studio, we also became the first ever creative studio to introduce art therapy in Pakistan. And अब बहुत से और स्टूडियो स्पेसेस खुल गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. मेरे पास कोई ना कोई आता है और मुझे कहता है पता है वो भी खुल गया है, या मेरे अपने जानू मेरे सारे दोस्त और मेरे जो टीम मेंबर्स हैं ना वो भी मुझे ना भेज रहे होते हैं, डीएम्स आ रहे होते हैं मुझे और सब कुछ. एंड जो मैं पहले बात कहती थी वो मैं अभी भी कहती हूँ कि हैंग ऑन एवरीवन, लिसन. जिस तरह आप एक रेस्टोरेंट जाते हैं, खाने के अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं रह गया था, हर कोई खाना 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 खाना, और वो भी खाना भी ना टेस्टलेस होता जा रहा था. वो ये टेस्टलेस नहीं था कि इंग्रेडिएंट्स खराब हो रहे हों, वो हो रहे होंगे, वो बिकॉज यू वर जस्ट ईटिंग, आपके टेस्ट बड्स कुछ नया टेस्ट ही नहीं कर रहे थे, आप कितना खाना खाओगे. दैट देयर इज नथिंग न्यू टू लाइफ.
एज वेल ना, आप एक ही बॉडी को वही चीजें देते जा रहे हो, फ्रेम ऑफ माइंड भी वो है, देयर इज नो चेंज टू इट. सो व्हेन वी स्टार्टेड दिस वर्कशॉप्स, पीपल वर लाइक कि हम क्यों पैसे दें और क्यों आए, हम तो खाना खा लेंगे जाके. आई वाज लाइक, हाँ लेकिन यू नो दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कम हेयर एंड डू इट और नॉट कम हेयर और डू इट. एंड देन these places have started to open, which was so important कि देखें, अगर आपको कहीं रिजर्वेशन नहीं मिली है या अगर आपको कहीं का खाना नहीं पसंद आया, आप दूसरी जगह जाएंगे ना, आप भूखे तो नहीं रहेंगे. You would go to another place. That was the concept of building institutions and libraries as well, and institutionalizing things as well, कि अगर एक जगह नहीं कोई चीज मिल रही है, आप दूसरी जगह जाएंगे. एंड इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट ये था कि हाँ, उसको हम लोगों ने पिक्चर कर दिया, उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए. वो अब डिफरेंट चीज तरीकों से हो सकती है, लेकिन ढेर सारी वो चीजें होनी चाहिए. यू वुड डू द सेम. एक जगह पट्टी नहीं लग रही, आप दूसरी जगह से जाके लगवा लेंगे. सो विद दीज प्लेसेस ओपनिंग अप, आई फील लाइक शायद जो मैंने करना था ना, वो उसका एक पार्ट बहुत बड़ा हो गया है, दैट पीपल हैव स्टार्टेड टू रियलाइज दैट दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे नीड टू हैपन. एंड पीपल हु गो आउट, Yeah, go ahead, go ahead. वो जो आपकी सेंस ऑफ वैलिडेशन और वो थी ना, कि आपका वो दिन या पूरा हफ्ता या वो पूरा महीना उस चीज को देख के आपको सुकून मिलता है या आप कहीं ना कहीं खुश होते हैं, द सेंस ऑफ हैप्पीनेस. एंड द पीपल दैट यू फाउंड देयर हु स्पोक टू यू विद काइंडनेस, Yep. वो आपको नहीं जानते. एंड यू सी कि यार, पीपल कैन बी काइंड, पीपल डू नॉट हैव टू बुली यू ऑल द टाइम. और आपका कॉन्वर्सेशन, यू डू नॉट हैव टू कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, यू डू नॉट हैव टू हैव द सेम थॉट्स in life as well, but you can still coexist together. कुछ नहीं होगा, किसी ने एक दूसरे को मारा पीटा नहीं है, कोई गालम गलोच नहीं हुआ, कोई गंदी जबान नहीं यूज हुई, कुछ नहीं हुआ. You can coexist together. You've said an amazing thing. मैं बिजनेस टर्म्स में भी ये चीज आर्टिकुलेट करता हूँ. उससे पहले मैं रिमार्क मारने लगा था जब आपने अली जाफरी एंड सॉन्ग्स का कहा था, तो यू जस्ट हिट फरीहा राइट इन द हार्ट विद दैट. तो मैं कहने ये लगा था कि फ्रॉम द बिजनेस टर्म्स, जो ओवरऑल पाई का साइज होता है वो बड़ा करने में सारा बिजनेस बेनिफिट होता है इन अ वे कि पाकिस्तान, लाहौर के अंदर रफली लेट्स से 1.8 करोड़ की आबादी है. मेलबर्न एंड सिंगापुर के अंदर 60 लाख है, विच इज 1/3 ऑफ पाकिस्तान. बट मेलबर्न और सिंगापुर के अंदर पाकिस्तान से रफली 10, लाहौर से रफली 10x कॉफी प्लेसेस होंगी और 50x तक ये स्टूडियोज हैं जो क्रिएटिव एक्टिविटीज है फॉर 1/3 द आबादी. क्योंकि जो टारगेट ऑडियंस, जो लोगों को इन बारे में शऊर है कि ये चीजें होती हैं, वो पाए बहुत बड़ा हो गया है. लेट्स से अगर 60 लाख है तो उसमें से 5 लाख लोगों को पता होगा उन्हें ये लेना है. लेकिन पाकिस्तान में 1.8, लाहौर में 1.8 करोड़ में से शायद 20,000 या 50,000 लोगों से ज्यादा का नहीं पता होगा. हमने लाहौर में ये देखा है प्री 2010 जब हम ओए लेवल्स में होते थे, तो स्वाइस सीटीसी कॉफी टी एंड कंपनी के देयर वाज नो प्लेस वी कैन हैंग आउट एज यंग पीपल. 2010 टू 2020 के अंदर ग्लोरिया जीन्स और सीबीटीएल आगे थे. दे वर लाइक प्रोबेबली अबाउट 8 सच आउटलेट्स, ग्लोरिया एंड सीबीटीएल. चलो जी, यंग पीपल हैंग आउट यहाँ करते हैं, क्योंकि द आइडिया के कॉफी प्लेसेस, कैफेज एग्जिस्ट, कॉफी कल्चर इज अ थिंग एंड ऑल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट. बट जब पाए पड़ा हुआ, जब ज्यादा ऑडियंस को पता चला कि यार कॉफी पे भी आप हैंग आउट करते हो, कॉफी इज अ ग्रेट थिंग, लेट्स हैंग आउट अ कैफे. तो इस वक्त पोस्ट कोविड, ये जब आप आर्टिसंस, डबल शॉट्स, टिम हॉर्टन्स, अपना थर्ड कल्चर, इन सबको जब आप और ब्रू बार एंड सो मेनी मोर जब आप टोटल करते हैं, दिस इज लाइक 10x मोर देन ये प्री कोविड था. लेकिन वो और तेजी से ब्रांचेस खोल रहे हैं. डबल शॉट इज मेड टू ओपन 2 ब्रांचेस इन 2024, आर्टिसन सिमिलरली, क्योंकि पाई इतना बड़ा होता जा रहा है. जो आपकी एक्टिविटीज हैं, बाय द वे जिम का भी हमने यही देखा है. 2015 से पहले आप जिम ढूंढ के दिखा दें लाहौर में, शेप्स के अलावा, जहाँ पे कोई जा सके. वो सवाए वो गली मोहल्ले में थे जहाँ सलमान खान बनने आप पहुंच जाते थे बड़े बड़े वेट्स उठाने. लेकिन वेयर वुमेन विल गो, वेयर पीपल हु वांट टू बिकम एथलीट्स विल गो, वो नहीं जाते थे जिम्स के अंदर. इट वाजंट एग्जिस्ट. अब आप जितने भी जिम्स खोलते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्राउड से ज्यादा आता जा रहा है, क्योंकि पाई बड़ा हो गया है. तो जो आप लोगों ने शुरू किया है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, वो एक्चुअली जितने ज्यादा आएंगे, लेट्स से अगर 10 और आ जाते हैं, तो वो पाए, अवेयरनेस फैलती है सोशल मीडिया से, वो पाए और बड़ा होता है, सबको और ज्यादा क्राउड मिलता है. क्योंकि अभी बहुत बड़ा रूम पड़ा है. द यंग पीपल इन पाकिस्तान हु वांट्स टू डू इट. एंड हु सेड यंग पीपल? हम घर आके अपने मॉम डैड को कह रहे थे चले हमारे साथ पेंट करने चले आप इन स्टूल्स को. बहुत बड़ा पाए है, Exactly. बहुत बड़ा पाए है वो. when जिस दिन मुझे याद है, मैंने मशरूम लेक का मुझे याद है वो एक वो
नीचे ना एक मशले का बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, आपने देखा होगा. So we are physically located at a certain place in Lahore, लेकिन we travel all across Right. Pakistan as well. अब हम Right. pop-ups भी करते हैं. We were the first pioneers to introduce pop-up culture in Pakistan. कि Right. you can go somewhere and make it happen as Right. well. So उसके अंदर मुझे याद है मैं वो गई और मैंने कहा यार इक्का दुक्का ना लोग आ जाएंगे या कुछ. Believe me or not, Waqas and Faria, till date, this is 2025, we have welcomed not only just children and adults, yeah, only women, grandparents, great grandparents have come to Mashallah. ठीक है, मतलब just imagine, and they're countless. मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितने आए हुए हैं कि अब तो मैं ट्रैक भूल गई हुई होंगी उस तरह. आई वुड सी देम एंड आई रिमेंबर देम. लेकिन them getting out of home and coming is a very big thing. बिकॉज़ वो नीड इतनी ज़्यादा थी. और ये जो आप पाए की बात कर रहे हैं ना, Amazing. हमारे यहाँ जो मैंने बात की थी दैट लोगों को ये कन्विंस करना कि यार आप अपने लिए कुछ करें. आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, थेरेपी, जिम, लाइफ़स्टाइल, आपकी फिटनेस हो गई, इवन कॉफ़ी एज़ वेल. यू नो व्हेन आई सेड कि हमारे मुल्क में जब कुछ नया आता है ना, हम ट्रांज़िशन नहीं करती, वी जस्ट fall into it and then it becomes a trap. सो वो ट्रेंड पहले बनता है, ठीक है, और फिर वो लाइफस्टाइल बाद में बनता है आपका. People started to go to gyms because other people were going to gyms. People started to wear athletic wear. Athletic wear. We were the biggest exporters of athletic goods and athletic wear. ठीक है, लेकिन वो कभी हमारे इन स्टोर्स नहीं आपको दिखता था. आपको इक्का दुक्का जगहों का पता था, वहां से ट्रैक पैंट्स मिल जाती थी, शर्ट्स मिल जाती थी. एकदम से all of a sudden all these pages, all these businesses have come up because उनको समझ आ गई थी ट्रेंड है. आप बस जिम वेयर पहन के ना बैठ के ओ बड़ा मजा आ रहा है, आई एम अ फिटनेस फ्रीक, यो गर्ल, ठीक है, आप उसमें रहोगे और खुश हो जाते थे लोग. ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब यहाँ तक हमारा जो सोशल बबल है और ये सब कुछ, उसके अंदर जाके ये भी दिखाना है कि आप ट्रेडमिल पे भी भाग रहे हो या आपने डंबल्स भी उठाए हैं और ये चीजें करनी है. वो ट्रेंड को फॉलो किया तो दूसरे ट्रेंड पे चले गए. हमारी आवाम मैं आज तक कहती हूँ, ऑल माई फ्रेंड्स आई नो, थर्ड कल्चर, सुलेमान कैफी वगैरह सब लोग कहेंगे ये जो है ना कॉफी वाली, द क्रैकिंग कर्नल, ऑल दीज प्लेसेस दैट आर ओपन अप कॉफी, राइट. आपकी अभी भी आधे से ज्यादा आवाम को नहीं पता कि व्हाट इज अ गुड एक्चुअल गुड कॉफी. दे मेक फैबुलस कॉफी, ठीक है, लेकिन अभी हम ट्रांजिशन उसके अंदर हो रहे हैं. हम लोग एक चाय पीने वाली कौम है यार, कि चाय चाहिए होती है, असल इंसानों वाली चाय चाहिए होती है. ठीक है, इट बिकेम अ ट्रेंड. थर्ड वेव थी आपकी, वो ट्रेंड बनी, एवरीवन स्टार्टेड टू हैव कॉफी. बेचारे लोगों को अल्सर शुरू हो गए गर्मी में, जून में कॉफी पिए जा रहे हैं खुश्क हो रहे हैं, मैदे अंदर से समझ नहीं आ रही, मुंह खुश्क हो रहे हैं, क्या हो रहा है भाई, आप कॉफी पी रहे हैं एक्सेसिवली, इजी हो जाए. सो it becomes a trend, and then it has taken me, this is almost, हम लोग 5 साल हमारे हम एंटर हो जाएंगे अब कुछ अरसे तक. वो उसके अंदर ना अभी तक एक सेगमेंट बना है जो पहली दफा आता है और वो कहते हैं कि वी आर जस्ट हेयर बिकॉज अदर पीपल वर हेयर एट मचले, सो वी आर हेयर. आई लव इट, आई एडोर दोज पीपल. लेकिन इट्स सो नाइस टू सी जब वो दूसरी दफा आते हैं, वो कहते हैं वी आर हेयर फॉर आवरसेल्व्स नाउ. और इस दफा हम अकेले आए हैं कि हम किसी और को साथ लेके आए, कि आपको रियलाइजेशन फिर होती है कि यार ये तो अच्छी चीज है. ये बाद में पता चलता है आपको, आप पहले उस नीड को फील नहीं करते हो क्योंकि कभी आपको किसी ने शायद फील ही नहीं कराई होती. हाउ दे से दैट, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस कि one would never know what kindness is like unless and until they haven't received kindness. एंड काइंडनेस कैन कम फ्रॉम सच रेयर स्पेसेस और सब कुछ कि आपको नहीं पता होता. इट्स दिस टाइनीस्ट थिंग कि कोई चल रहा होगा, आप उसको वैसे ही बता दो, आप उसको जानते भी नहीं हो कि आगे देहात से आगे एक ना ब्रांच गिरी हुई है. दिस इज काइंडनेस. ठीक है, हमारे यहाँ तो ये मसला हो गया था कि नहीं, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी. ठीक है, स्ट्रेंजर से बात नहीं करें, सफर में किसी का बैग नहीं पकड़ना, वो सारे घर वालों ने बातें बताई हुई हैं, आज तक वो बताते हैं. लेकिन यार स्टार्ट हैविंग कॉन्वर्सेशंस. यू वुडंट नो लाइफ अनलेस एंड अनटिल यू नो पीपल अराउंड यू. दुनिया में लोग और उनका होने का मकसद ही है ना, उन चीज़ों का होने का मकसद ही है. ऑल आर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, एवरीथिंग दैट हैपेंस इन पाकिस्तान एट मशगले इजंट समथिंग न्यू या कुछ. ठीक है, मैं इस बात को खुद एडमिट कर रही हूँ. These are things that were always happening.
दे वर डाइंग आर्ट्स, आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई, आपका वुड वर्क हो गया, हम रिलाई करना शुरू हो गए थे लोगों के ऊपर। ये तो वो चीज़ें जो आपको खुद भी आनी चाहिए। सो वी हैव दिस 101 कोर्स जिसके अंदर वो सितंबर के टाइम में होते हैं व्हेन किड्स आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, और वो टाइम आ रहा होता है घरों से पहली दफ़ा बाहर निकल रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है उस वक़्त बच्चों को देखने का कि अब पता लगेगा ज़िंदगी का। तो आई साउंड लाइक अ इविल खाला टू देम। तो उसके अंदर ना वो कोर्स मैंने बनाया हुआ है जिसके अंदर है दैट यू हैव टू लर्न लाइफ हैक्स इन इट ना। सो इट्स सिंपल लाइक धागे को नीडल में किस तरह ढालें। एवरीवन्स लाइक जबरदस्त। वो आपने वीडियोस देखी हुई हैं, आ रही होती हैं कि देयर इज अ मदर और वो कह रही होती है डिश वॉश करके हाँ, और सब घर काबिल। के बच्चे देख रहे होते हैं या ओके। सो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट दीज आर राइट देयर। मुझे याद है बचपन में आप घास के पास खेल रहे होते थे, माली आता था गोडी साथ कर रहे होते थे, ठीक है। बीच में एक आया था कि व्हाट इज गौडी, गौडी क्या होता है भाई, आपके सारे पौधे परिंदे सब कुछ उससे हुए हैं। मट्टी को उठा के आप क्ले बना के उसको खेल रहे हैं, मट्टी खाना, वो सौंधी खुशबू जो आना है और वो सारी चीजें। वी स्टार्टेड टू फॉरगेट ऑल दिस, और ऑब्वियसली फिर आपकी सेंसेस भी हार्नेस होंगी उसमें से। एंड व्हेन दैट हैपेंस यू वुडंट कॉन्टैक्ट विद पीपल एज वेल। आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि हेल्पिंग हैंड। आपने कहा कि कामरान भाई ने कहा कि वो आपका एकदम से आपको घर जैसा फील होना शुरू हो गया, फवाद ने आपको चाय बना के दे दी। दे डिडंट नो यू, उनका पर्सनल मोटिव उसमें से कुछ नहीं था। मैंने भी उनको नहीं कहा था कि वो लोग आएंगे, आप लोगों ने उनसे तमीज से बात करनी है, ये सब कुछ होगा और सब कुछ। दे हैव चोजन मशले फॉर देमसेल्व्स एज वेल। वो लोग अपना दिन में कोई और काम कर रहे होते हैं, हफ्ते में वो पूरा दिन कोई और काम करते हैं जो उनका एक्चुअल ब्रेड एंड बटर है इन सब लोगों का। दे कम टू मशले बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग फॉर अदर पीपल एज वेल। दे वांट टू बी द हैंड के अगर किसी को हथौड़ी चलानी नहीं आ रही तो उसको करा सकें कि दिस इज हाउ अ हैमर इज हेल्ड एंड दिस इज हाउ यू स्ट्रक अ नेल इन इट, ठीक है। सो these are tiny bits ब्यूटीफुल, of ब्यूटीफुल, life that have been just simply incorporated in ब्यूटीफुल, मशले। कोई वो कहना कि नहीं there was a business model behind this, ब्यूटीफुल। और फिर पाई चार्ट बना था और फिर वो बना था कुछ बना था। नो, this is what simply life is, and these are the expressions of life. आपने वो बात की थी ना कि we were discussing about quotes. तो there is a quote by my nano, my late nani. She passed away last year, and I was very close to her. I say that she's my mentor. She's the one जिनके mantras पे I spend life and everything. So वो मुझे जिंदगी में एक बात कहती थी, especially when I had a downfall in life. वो मुझे कहती थी सब खैर होगी। वो कहती थी बस ये कहती रहो सब खैर होगी, सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सेठ सब खैर होगी, सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड एंड पे सब सही हो जाता है। इवन विद आर्ट्स एज वेल, यू नो, विद आर्ट्स क्या होगा, लकड़ी गलत जगह पे लग जाएगी, फिर वो ठीक हो जाएगी। सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, Mashal is not an art studio, core art studio. We're a creative studio. We do creative based skills कि आप या तो उसको as a hobby adopt कर लें अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है, just have a fun time for a day, even if you do not want to adopt it as a hobby, but just have a fun time. Or adopt it as a even future में अपना कोई business वगैरह आप खोलना चाहें उस skill के through, तो आप वो खोल सकते हैं। और उस हर चीज के अंदर कोई चीज खराब नहीं होगी। There'll always be a way to fix it. और अगर वो खराब हो भी गई, it's not the end of the world. It's it's completely fine. ठीक है, There is मतलब a, it is beautiful. इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है of losing people to death and to life. I don't think इससे बड़ी जिंदगी में कोई चीज हो सकती है। चीजें और वेंचर्स और आइडियाज, चलना ना चलना तो बहुत छोटी चीज है उसके आगे। So if you apply these things in life and in so people who come to Mashale, we always keep reminding them, आपकी भी workshop में आप बोल रहे का होगा कि it's fine, it will work out, कामरान भाई fix कर देंगे, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। Each workshop that you take, that is from pottery to embroidery to candle making, anything, we customize workshops as well. आप कुछ भी लोगे, उसका मंत्र ये है कि सब खैर होगी, सब सही हो जाएगा, डोंट वरी, एंड यू डू नॉट हैव टू नो एनीथिंग इन लाइफ।
No one is born knowing anything. So if you say कि मैंने तो आज तक पेंट ब्रश नहीं पकड़ा या मैंने पेंसिल नहीं पकड़ी है, उसका मतलब ये नहीं है. अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को इतने कॉम्प्लेक्सेस में डाल दिया हुआ है दैट वी आर जज्ड हर चीज़ के ऊपर. वे लाइक लाइन सीधी लगाई है कि नहीं है. आप एक आर्ट स्कूल के पाकिस्तान में किसी भी आर्ट स्कूल में टेस्ट देने जाओ, ठीक है, आप एक लाइन लगाओगे, वो कहेंगे ये लाइन इस तरह नहीं थी, आपको इस तरह लगानी चाहिए थी. आप बाहर के किसी आर्ट स्कूल में वो टेस्ट देने जाओ, दे विल बी लाइक वाओ abstract. We think you have the talent. Why don't you polish it this way? There's a way of saying things and doing things as well. You know, that Amazing, giving hope amazing. to a person. Yeah, So, it is. Go ahead, go ahead. so you know, मैं तो when आप people come to Mashgale as well, they have that sense of hope, and when they leave with it, they're hopeless actually. वो आते हैं और फिर हम उनको hopeless romantics बना के भेजते हैं कि सब बाहर होगी, घर घर जाके ना सबको पाइप पकड़ाएंगे, पानी निकलेगा, बारिश होती रहेगी. मेरा मेरा आपसे सवाल है कि the analogies that you use and the way you describe, अब खैर होगी, सब ठीक हो जाएगा, होपलेस रोमांटिक, या आपके सोशल मीडिया पे या आपकी ब्रांडिंग में कहीं यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बस आप डिलीवरी करते हो ऑन द स्पॉट? No, so ये पहले नहीं हो रहा होता था, और अब क्योंकि now अल्हम्दुलिल्लाह I have a team as well, मोमिना है, फवाद है, तारिक है, सब लोग, तो इन लोगों ने ना ये जो मेरी बात है ना जो मैं क्या के ले जाती हूँ, they're like no, we have to write it, we have. So एग्जैक्टली. our main tagline is a safe space for everyone regardless of their identities, ages and everything, and then it is सब सही होगा, सब खैर होगी, सब ठीक हो जाएगा. Wow, So we wow. keep It is having a life, it's a proper life philosophy, and you know that कि Three Idiots was built on this life philosophy as well, कि all is well, all is well, all is well, because ये बड़ी psychology है इसके पीछे, and ये is a good life philosophy. आप तीन चीजें मुझे mention करनी है. पहला ये कि I am very happy that you started वो जो यूनिवर्सिटी के लाइफ हैक्स वाला है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे करवाया था एक दफा, हमारी आई थिंक वन ऑफ माय कजन्स बर्थडे, 8 of us, तो आई डू दीज गेम्स हियर एज वेल, दिस इज व्हाट आई लव. तो मैंने एक गेम थी कोई 2 मिनट के अंदर, जिसने सबके सामने एक छोटा सा कपड़े का पीस, सुई और धागा पड़ा हुआ था, सॉरी सुई धागा और बटन पड़ा हुआ था, कि 2 मिनट के अंदर जिसने सबसे पहले अपना सी लिया, एंड देन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, एंड बटन शुड बी गुड इनफ के मॉम्स शुड से के दिस इज अ गुड स्टिच. अच्छा, 2 मिनट शुरू हुए तो 8 में से 5 की तो धागा ही नहीं डला सुई में, तो वैसे ही फारिग हो गए. इट वाज लाइक, मतलब जो मैंने सोचा भी नहीं था माइंड में कि वहां पे भी टेस्ट होगा, मुझे लगा था वो टेस्ट नहीं है, दैट इज नॉट अ टेस्ट, वो तो 30 सेकंड में कोई भी कर ही लेगा, तो द टेस्ट विल बी कौन पहले स्टिच करता है. बट आई कंप्लीटली गॉट इट रॉन्ग, वो धागा ही नहीं डला सुई के अंदर, आके उन्होंने क्या करना था. सो आई रियलाइज के ओ शिट, लाइफ हैक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी. Yeah. And they are not only important, they're also not relevant to genders. They're for everyone. They're for all humans as well. हम लोगों ने इतना जब हम लोगों ने स्टिचिंग वगैरह और एम्ब्रॉयडरी की वर्कशॉप शुरू की थी ना, तो मुझे याद है हर कोई कहता था ज़्यादातर लड़कियां आएंगी, ज़्यादातर लड़कियां आएंगी. इतने लड़कियां आए हैं, इतने लड़कियां आए हैं कि there was this guy, if we have time and I can tell you guys this because this is हम very हमारे funny. पास हमारे पास एंड टाइम नहीं है, कोई है ही नहीं एंड अच्छा, टाइम, वी एंड व्हेन यू एंड विद योर स्टोरीज. सो वो ना क्रोशे की वर्कशॉप थी. सो क्रोशे और निटिंग में अवाम बहुत डिफरेंस होते हैं. निटिंग 2 हाथों से होती है, क्रोशे 1 हाथ से होता है. सो आपके क्रोशे की जो मूवमेंट होती है ना, इफ समवन इज अ डॉक्टर एंड देयर हियर, वो शायद बेहतर तरीके से नीचे कमेंट करके फिर बताइएगा, एंड इज इनटू न्यूरो. आपका ब्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन द ह्यूमन बॉडी, और आज तक उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, एंड उसके अंदर हर चीज इज स्टिल इनडेफिनेट. नथिंग, नो क्योर, नथिंग इज डेफिनेट इन दैट. सो ब्रेन बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. सो क्रोशे के जो मूवमेंट्स है ना, वो आपकी न्यूरो से बड़ी मैच करती हैं और स्टिचेस से. सो देयर वाज दिस गाय, और वो आता था, और ना वो पहले एक में आया, वो सेम उसी वर्कशॉप में दूसरी में भी आ गया, तीसरी में भी आ गया. तीसरी में जब वो आया ना, मैं उसके पास गई और मैंने कहा क्या हाल है, और ये और वो आते रहते हो और सब कुछ. मैंने कहा मेरी बात सुनो, अब तो हमारी अच्छी चिलिंग्स भी हो गई हैं, तो बड़ी आपा ही बन के ना मैं ये बात तुमसे पूछ रही हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी. तो वो अब मुझे देखे कि मैं क्या कहने वाली हूँ. मैंने कहा बच्चियां देखने आते हो या क्या सीन है, या किसी से बात करने आते हो, क्योंकि मुझे बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगी कौन से वाली वर्कशॉप्स में आओ. तो वो हँसना शुरू हो गया, इतना हँसा, कहता है, "ओह माय गॉड, आमना, यू हैव एम्बैरेस्ड मी," और ये और वो, ऐसा नहीं है. एंड देन ही टोल्ड अस दैट सो बेसिकली he was a doctor.
he had applied for बाहर के लिए एक एग्जाम होता है, उसके लिए उसने अप्लाई किया था, जो आप एज अ सर्जन स्पेशलाइजेशन करने के लिए जब जा रहे होते हो अपना एमएस खत्म करके और सब कुछ. सो उसने उसके लिए जब अप्लाई किया तो उन्होंने उससे इंटरव्यू में पूछा दैट चाइल्ड, डू यू नो एनी ऑफ द स्किल्स टू डू विद एम्ब्रॉयडरी, क्रोशे, या उन्होंने सारी चीज़ों से पूछी. कहता मी बीइंग अ टिपिकल पाकिस्तानी गाय, आई वाज लाइक नो, नेवर लर्न देम. उन्होंने कहा you never learned them at school or home? I said, no, never. They were so kind enough. Look at the attitude as well. You're saying no to someone. They were like, we're going to pause this interview right here. We'll come back. We're giving you 6 months. उस वक्त जब seats खुलेंगी, we are putting your name here because you're a great candidate for it, या जो भी उनकी processing थी, and learn one of these skills and we'll get on call again. कहते हैं मेरी तो जिंदगी ना रुक गई कि मैंने जिस चीज के लिए पूरा अपने एग्जाम्स दिए और सब कुछ हुए और सब कुछ, मैं क्या करूंगा अब. एंड देन आई स्टार्टेड टू लुक अप, और मुझे मशगले का नहीं पता था, लेकिन ये वर्कशॉप आ रही थी और कहीं नहीं आ रही थी, और मैं आ गया. और मुझे था कि मैं घर पे भी कहूँगा तो वो लोग कहेंगे क्या कर रहे हो, या पेशेंस नहीं होगा उनके अंदर सिखाने का और सब कुछ. मैं आ गया हूँ अब. एंड फॉर those 3-4 months he used to come at all these workshops. वो करता रहा. फिर हमने उसको कहा कि अच्छा वीडियोस देखना शुरू करो और सब कुछ. And we realized that it's so important. Just imagine the basic skill आपकी थी एक, that was applicable to a professional life as well. And one of इसी बात से one of our instructors जो हमारी embroidery और cross stitch कराती हैं, by profession she is a doctor, लेकिन वो हमारी workshops कराती है. So just Amazing. imagine. Yeah, this is what a story. Yeah, what a beautiful story. And this it was amazing to see. And that kind-hearted guy वो इधर चुप करके आ रहा है, आके सीख रहा है, और उसने उसके 6 महीने बाद जाना है इंटरव्यू में. मैं It's आपको so पता लगा रही हूँ, असल में इतना सीरियस उसकी ही जिंदगी का मकसद था उसके पीछे. लेकिन और फिर पता है मैं इस चीज को क्वेश्चन करना शुरू हो गई कि उसने मुझसे ना कोई सर्टिफिकेशन मांगी या कुछ. तो जब वो चला गया कुछ अरसे के बाद मुझे याद आया, मैंने कहा मे बी ही वाज टू शाय टू आस्क, बिकॉज हम लोग ना बहुत शर्मा हजूरी में भी रह जाते हैं, दैट वी डू नॉट आस्क फॉर एक्स्ट्रा के ना हम करें किसी से बात. तो मैंने उसका जो वो था कॉन्टैक्ट वगैरह डिटेल से हम लोगों ने उसको मशले से कॉन्टैक्ट करवाया मैंने. And I was like that, do you know need a certification for it? या कुछ, we do not give certifications, but we can write it on a letterhead that you were here for these many days और सब कुछ. कहते you know I never thought about it, but they never asked for it. क्योंकि उन लोगों के लिए भी a skill or something that you learn does not need to come with a certification to deal with it. It needs to be within you, या आपको naturally वो चीज़ आनी चाहिए. उसके लिए आपको ये नहीं आना चाहिए कि मैंने ये किया. मैं अनलेस एंड अनटिल ऑब्वियसली आप डॉक्टर बन रहे हो, आपको डिग्री चाहिए, कि मैं नहीं करी कि डिग्री ना लो या कुछ. लेकिन बेसिक चीज़ों के लिए आपको सर्टिफिकेशंस की उस तरह नहीं. हाँ, टू यूज देम इन प्रैक्टिकल वेज और सब कुछ, यस यू नीड इट. लेकिन वहाँ क्वेश्चनेबल चीज़ नहीं थी. हमारे यहाँ सबसे पहले अगर होता, अनफॉर्चुनेटली वो सबसे पहले उसको इतना जिच करते उस इंसान को, और इतना आगे से आते इसकी सर्टिफिकेशन लगाएं, ये तो अटेस्टेड जगह नहीं है, यहाँ से आपने क्यों किया, ये तो इंसान जो करा रही है उनको तो मेडिकल के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने आपको ये कैसे सिखा दी है चीज. यू नो वी मेक लाइफ सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर अदर्स कि भाई जिंदगी ना गुजारने पे मजबूर कर दो किसी को. you're absolutely right, because in the new world, companies, even quite a lot of these serious legacy professions, they're actually looking for skills, क्योंकि skills हो ही इतने change गए हैं, and there is a certain aura about a person जिसको skills आते होते हैं. वो बैठ के ये नहीं कहेगा, झूठ नहीं बोलेगा कि मुझे क्रोशे आता है, क्योंकि उसका ऑरा ही बता देगा कि ही इज राइट. लाइक हाँ, मैंने यहाँ पे किया था इतना ये वो. वर्ल्ड इज कम्प्लीटली चेंज, स्पेशली. तो आई ऑल्सो ग्रेजुएटेड इन 2014, तो 10-11 साल हो गए. whatever I learned was irrelevant in 2 years. बट अभी की पोस्ट कोविड दुनिया के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी का 4 year करिकुलम होता है या 2 years होता है, तो वो इतना पीछे है कि वो 2 से 4 साल के अंदर जब तक बच्चा ग्रेजुएट होता है, तो वो इतना ज्यादा दुनिया बदल गई होती है कि कंपनीज नो नाउ कि यूनिवर्सिटी वाले से हमने उसका नहीं पूछना कि वो क्या प्रोजेक्ट्स करके बाहर आया है, वो हमने स्किल. बाय द वे आपना, यू वुड लाइक इट, हमारी आज it's a fun fact, although this recording is for 1 hour 15 minutes or something, but कोने में शायद आपको जूम का टाइमर नजर आ रहा होगा, वो 3 घंटे पे गया हुआ है इस वक्त. the Sorry, reason just is, a second. हाँ हाँ. I'm good for now.
थैंक यू सो मच। मेरी देखिए खातिर भी हो रही है, ब्राउनीज भी आ गई हैं मेरे लिए। मैं लाहौर एक और वन थैंक यू मोर इन लाहौर प्लीज। आपको एक और लाहौर का एड्रेस दे देते हैं, कराची वाले को हम सेंस रहने ऑफ देते हैं। कम्युनिटी। दोस्तों के Yeah. घर की बिजली, दोस्तों के घर का इंटीरियर इस्तेमाल करें, चाय पिए, कॉफी खाएं, ब्राउनी खाएं और फिर अपने घर जाके सो जाए नहा धो के। So the reason that timer has gone to about 3 hours for the entire Zoom call कि आपकी इससे पहले ना हमारा चल रहा था 160 people applied for our social media internship in our company, and instead of interviewing them or anything, CVs कुछ भी नहीं, I got all of them on a call and we just started giving them step by step टास्क टाइप कह लें कि वीडियो ऑन करके इंट्रोड्यूस करना है ये वो, और वो करते करते ठक 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 करके टॉप 9 पे खुद ही हो गए। और 9 के बाद फिर हमने उनको थोड़ा सा डिटेल बात की, एक आध टास्क दी। सो वी एक्ट एंड इन द एंटायर थिंग द वन दैट वी शॉर्टलिस्टेड 3 ऑफ देम नाउ, जिनको हमने फर्दर आगे लेके गए हैं, वी हैव नॉट आस्क्ड देम क्या जीपीए है, क्या पढ़ा है, क्या कुछ नहीं मैटर करता। एंड हमने सेल्स का भी इसी तरह हायर किया है 2 days ago कि वी रैन दिस मैराथन काइंड ऑफ थिंग एंड वी लाइक, क्योंकि एक्चुअली हमें नहीं पता बीइंग अ कंपनी इन पाकिस्तान एंड एवरीबॉडी इज लिसनिंग कि हम किस तरह हायर करें। हमारे पास है वेब डेवलपर, सोशल मीडिया, सेल्स, डिजाइन, कॉपी राइटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, हम ये तो सारे हम आप बोल रहे हैं जो एक कंपनी चलाने के लिए चाहिए होते हैं। इस कहाँ से हम यूनिवर्सिटी से देखें? वेयर डज दिस एग्जिस्ट? दिस डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। You either have done your workshops or your experiences, built your brand and you know the skills, or you don't know the skills, तो आपको कोई और स्किल आता होगा, but it's really the skills. बस अब यही चाहिए पूरी दुनिया में आगे, स्किल्स बेस्ड इकोनॉमी हो गई है। स्किल्स चाहिए और उस स्किल्स को आगे सिखाना। ये जो हमारी गेट कीपिंग है ना, व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद हम्म। ये रेसिपीज हर कोई शेयर करता था, देयर वाज दिस एक चीज हुई थी मेरी जिंदगी में। आई आस्क्ड फॉर अ रेसिपी एंड दिस पर्सन डिडंट गिव इट टू मी, एंड दिस वाज यूज्ड टू बी अ वेरी क्लोज पर्सन इन माय लाइफ। एंड देन दिस पर्सन डाउटेड कि नहीं मैं क्यों दूं ये चीज और सब कुछ, और फिर उन्होंने किसी और ने मांगी, उसको दे दी। एंड आई वाज लाइक सो हर्ट विद इट कि मतलब यार ये क्या चीज है, एक रेसिपी और सब कुछ। एंड आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि जो आपकी चीज होती है ना, आप नहीं देते, वो आगे किस तरह बढ़ेगी। जिंदगी बहुत छोटी है, शायद वो इंसान रहे ना रहे। आज तक आप लोग हैं, हम लोग कोई ना कोई बात करते हैं कि यार मेरी दादी वो चीज बनाती थी, या मेरे नाना वो यूं करते थे और सब कुछ, ठीक है। कोई आपके घर में शायद वो करता हो या नहीं करता हो, जो करता है उन्होंने उसको दिल खोल के वो चीज बिला झिझक पास ऑन कर दी। जो नहीं करता वो शायद नहीं कर सके, या उनको वो सीख नहीं सके। आप कभी कभार मांग के भी आपको सीखना पड़ता है, यू नो, यू नीड टू आस्क फॉर व्हाट्स योर्स और व्हाट यू वांट टू मेक योर्स एज वेल। In relationships as well, I always say to people, make the first move. It's okay if someone says no, it's fine. Lekin what's yours doesn't know, okay, this person wants me in their life. So उसके अंदर ना ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, द स्किल कि पास इट ऑन, शेयर थिंग्स विद पीपल, शेयर आइडियाज विद पीपल। जो आपका है वो आपका रहेगा, जो रिस्क आपके लिए लिखा हुआ है वो चल के भी आएगा, वो ऊपर से भी आएगा, वो कोई ला के भी आपको दे देगा, जिस टाइम ब्राउनीज भी आई है। So वो that will be yours, that will be yours. Yeah, कि आज beautiful. ही रिसेंटली एक चीज हो रही है मेरे साथ, someone was probably not happy with me and they were angry at me, and you know in anger you say things शायद आप you don't even mean them और आप कह देते हो। So this person didn't realize that I was there and I had heard it that इनको तो कुछ करना ही नहीं आता और इनको तो कुछ पता ही नहीं है और ये और वो और इस तरह की चीजें। Not realizing that you know the choice of your words and the choice of putting someone in doubt with their thing के बहुत से लोग होते हैं, वो उनका सेंस ऑफ जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो बहुत फ्रैजाइल होता है। हम सेल्फ डाउट में उसी वक्त जाते हैं जब लोग हमें डालना शुरू करते हैं। एंड क्वेश्चनिंग समवन स्किल्स एज वेल, यार समवन वुडंट नो, शायद मुझे एक्चुअली वो चीज़ नहीं करनी आती होगी, एक्चुअली नहीं आती, ठीक है। हाउ वुड आई know it unless and until you tell me how it's done? Regardless of how old you are, what capacity you are in, या कुछ भी, it's always teaching one how to do. आप बच्चों को भी तो सिखाते हैं ना, उनको नहीं पता होता कि अच्छा ये इसी तरह पेंसिल पकड़नी है, आपने करनी है। You always teach one person. It's also with positions as well. I'm so happy that you said it कि उनको आइडिया होगा, उनके दिमाग में वो क्लैरिटी होगी उस चीज की, डेफिनेशन की या उस प्रोसेस की, लेकिन क्या पता उनको प्रैक्टिकली वो नहीं करना आता होगा, तो कोई बात नहीं, आप सिखा देंगे उन्हें और दे विल लर्न विद टाइम। Amazing. Amazing.
वो आपने रिलेशनशिप का भी इतने जिक्र किया और आप पहले लड़कों का भी कहा था कि लड़कियां ज्यादा आएंगी इन जोया एंड आई। जोया इज द स्टाइलिस्ट, बट सब कुछ बटन भी मैं सीता हूँ, उसको नहीं आता। लेसेस भी बंद करने मुझे आते हैं, पैबंद लगाने सब कुछ मुझे आता है, उसको नहीं आता। लड़कों को आता है भाई साहब, द न्यू एज गाइस, वी नो दिस। द दी अदर थिंग, मैंने आपको बोला थ्री मजे की चीजें आई थी। द सेकंड थिंग वाज, आपने वो बोला था कि पाकिस्तान में स्ट्रेट लाइन लगाए एंड इफ इट्स नॉट व्हाट दे वांट तो वो आपको कहते हैं। ऑल्सो अ ग्रेट पॉइंट। पूरी दुनिया के अंदर एंड पाकिस्तान में भी न्यू एज कंपनीज एंड स्पेशली इफ यू आर इवन गोइंग अक्रॉस एज योर ओन बिजनेस व्हिच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ दिस पॉडकास्ट एज वेल, पीपल हु हैव वांट टू गो आउट देयर विद देयर ओन guys. Honestly speaking, if you break the line, you step out of the box, then people will resonate with you more. वो वाला जो एक पाकिस्तान है उसमें आपको एक अगर आप उस तरह से चलोगे कि जिस तरह जो आमने ने कहा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि लाइन ऐसे है तो ऐसे ही लगानी है, तो फिर वो जॉब्स भी वही वाली हैं जहां पे आप बिल्कुल यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद इट। लेकिन देर आर कंपनीज जहां के अंदर, अब जैसे फरीहा व्हेन शी जॉइंड इन, तो शी गॉट into the design side of our business as well. So she got a lot of this design done जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं काबिल की ब्रांडिंग, बट उसका दिल कर रहा है तो उसने थोड़ा यहाँ पे छेड़खानी करेगी और पूछेगी मैं कर सकती हूँ, एंड विल बी लाइक सब कुछ करो, दिस इज योर कैनवस, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू बिकॉज यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बल्कि आपको अब ना मुझे से याद आया, आपको एक पैकेज आएगा मुझे लिटिल थैंक यू जेस्चर, वो आएगा कुछ अरसे के अंदर। तो उसके अंदर जो आपको दो चीजें निकलेंगी, आई नॉट रिवील इट फ्री, और मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस है उसके ऊपर ये स्टार यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा, वो लाइक सकस फॉर डिजाइन। आप उसके अंदर आपने उसको आपने बताना है हमें हाउ डिड यू लाइक इट, क्योंकि उसके अंदर फरिया बीइंग फरिया, शी इज द डिजाइनर, शी इज लाइक कमिंग अप विद ऑल दिस ब्रांडिंग, फिर कह रही यार यहाँ पे मजा नहीं आया, ये नहीं ठीक लगा यहाँ पे Yeah, तो। yeah, actually you approved it. You approved the design. Like you या approved it. I was like, no, 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 I'm not happy with the star. And then I removed it and put it somewhere else. आवर अदर को नहीं, फाइंडर, हाँ हाँ go ahead. हम उसका रिवील करेंगे, पैकेज रिवील करेंगे और फिर ना आप फवाद से तो मिलेंगे, मिले भी हैं, तो माई टीम इज ऑल्सो वेरी फनी और वो सब कुछ उनके तबसरे हम रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेजेंगे और फिर आप अपने पेज से भी शेयर कीजिएगा कि सितारे Amazing, सही done. थे, सितारे गर्दन से मारे जा रहे थे। कल हमारे other co-founder Done. Alimuddin, our co-founder Alimuddin was over at my place to have a coffee after the paddle we played because कश्मीर डे था, सारे सबने छुट्टी ले ली तो हमने पैडल खेल ली, पैडल के बाद हम कॉफी पीने आ गए। तो उनको जब मैंने दिखाया वो फर्स्ट टाइम द प्रिंटेड स्टफ, तो ही एक्चुअली नोटिस द स्टार, कहते यार प्रीटी इंटरेस्टिंग। मैंने उनको बताया कि ये कैसे लाइन कहाँ से कहाँ आई है, तो वी लव दिस। तो आप वी आर आई मीन हमें बहुत मजा आता है क्योंकि वी अंडरस्टैंड दिस व्हाट यू आर सेइंग ना कि इट्स कोई रूल्स नहीं है। द काबिल का लोगो है तो कोई रूल्स नहीं है, रूल्स वही हैं जो आपने बनाने हैं, एंड द मोर फन दैट यू कैन हैव विद इट। Last thought that I had, which is in one of my cohorts, I think 2 weeks ago, I did this maths in front of the class where I asked them कि आप अपने अपने एवरेज स्क्रीन टाइम में से शेयर करें लास्ट वीक का। तो स्क्रीन टाइम एवरेज निकला था आई थिंक 5-5.5 घंटे निकला था उन सबका। तो जब हमने उसको टोटल किया उस टाइम को पकड़ के, एक हमने 5.5 लिया, 5.5 hours a day को जब आप टोटल करते हैं इन 1 year, तो आपके एक साल के अंदर रफली आई थिंक 8,600 घंटे होते हैं, समवेयर अराउंड दैट, या 7,800 होते हैं, आई फॉरगॉटन व्हाट इट इज। बट 25 hours ऑफ 2,500 ऑफ दोस जो आप सो रहे होते हैं, अगर आप 8 hours की पर एवरेज लगाएं कि आप बेड पे जा रहे हो आ रहे हो, सो एक एवरेज पर्सन इज अप इन अ ईयर फॉर 5,000 hours रफली। और जब आप एवरेज स्क्रीन टाइम को कर रहे थे तो आपके 2,000 घंटे उसमें से खत्म हो जाते हैं। तो 5,000 में से आप 2,000 घंटे अपनी लाइफ के नहीं, एक साल में नहीं जीते, तो आपको लगता है कि आपका साल बहुत जल्दी चले गया क्योंकि आपने एक्चुअली सिर्फ 3,000 घंटे का साल एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि जो आपका स्क्रीन टाइम होता है मोबाइल का, वो आपका माइंड रजिस्टर नहीं करता एज एन एक्टिविटी, तो वो आपके जेहन में इट्स अ ब्लैंक स्टेट। जब आप अपना पिछला साल सोचेंगे ना 2025, आप लोगों में से कोई भी, तो आपको वो घंटे याद नहीं आ सकते किसी तरह भी कि व्हाट वर यू वाचिंग, व्हाट वर यू कंज्यूमिंग, व्हाट हु यू वर मैसेजिंग, व्हाट यू वर मैसेजिंग। और वो आप एवरेज देखोगे कि पिछले साल की अगर मोबाइल वो अलाउ करे आप लोगों को 2024 का स्क्रीन टाइम और वट एवर इट इज इन टर्म्स ऑफ आवर्स, इट वुड बी समवेयर बिटवीन 1,000 hours to 2,500 hours, विच इज के 5,000 घंटे जो आप एक्चुअली यूर अप एंड यूर एक्टिव, उसमें से 20, 30, 40% आवर्स खत्म हो जाते हैं लाइफ के, गॉन। तो जब और एंड दैट्स व्हाई आई एम सो बुलिश ऑन द फैक्ट कि व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग अ मैसिव social service in Pakistan, because every hour spent
in this 2 hours, 3 hours, 8 hours over the year, वो सारे are distinct hours that people जो आपका mind याद रखता है, and it adds to the quality of perceived quality of your life as well. कि यार, I have actually lived better. Amna, with that, we are going And to a have some rapid. Yeah, go ahead. and a core memory of your life that you know, somewhere down the line, even if हम हमारी मुलाकात वो तो हो गई और हम मिले हुए, कभी ना कभी आप जिंदगी में कभी किसी को स्टोरी सुनाएंगे कि आप और जोया गए थे, एंड मे बी Yeah. हम हो उस वक्त नहीं हो दुनिया में, यू नेवर नो अबाउट लाइफ, लेकिन यू नो एक को स्टोरी दुनिया के अंदर आ गई हुई है. So memories and stories are very important in life for other people as well. Beautiful. Beautiful. Amna, last ending, some quick rapid fire questions. The answers can be rapid or not so rapid as well. Mashkale, the name. Love the name. कैसे आया? Majhule was actually Irtaza, जिनका मैंने जिक्र किया था, who has been the वो पुश नहीं होता और वो फरिश्ता. इर्तजा सुन रहे होंगे अगर तो वो बहुत हंसेंगे और गुस्सा भी उनको आएगा. मैं उनको कहती थी इर्तजा अगर कोई मोमिन की डेफिनेशन होती है ना वो आप होंगे. तो कहते थे अल्लाह माफी दे, कैसी बातें तुम करती हो. मैं कहती थी नहीं. एंड ही इज दिस बिग गाय विद अ लॉट ऑफ टैटूज और सब कुछ, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान कहेगा वो कहेगा who the hell, why is he here, and he's the most soft spoken person. So उसके बिल्कुल बरक्स आपको एक पर्सनालिटी और एक इंसान मिलता है, a true human. So when Machilde was coming into being, everyone was like कि हाँ अच्छी तो थोड़ी थोड़ी ना बात शुरू हुई थी. So everyone was like कि मशले कर लो, अच्छी भली चीजें छोड़ के, नौकरियां पढ़ाइयां छोड़ के मशले करा लो. And it was like हाँ मशले ही है. So in मशले का मतलब होता है हॉबी. हाँ, hobbies. Yeah. Hobbies, ठीक है, मशागिल hobbies. And in Arabic and Persian, it means a workshop. So it literally served the purpose. And we wanted something to be closer to home as well. उसके अंदर दो बड़े important elements हैं. वो उर्दू में लिखा हुआ है, मशगले. Yep. हमारी Yeah. रूट्स हम उर्दू लिखना भूलते जा रहे हैं. Like अब फर सब लोग, मोमिना, फवाद, तारिक, असफंत, ईमान, हर कोई ऐसे मशगले प्यारा लिख के देता है कि मेरी दिल खुश हो जाते हैं. इमला के बगैर सब बच्चे मुझे अच्छी उर्दू में मशगले लिख के दे रहे होते हैं. और दूसरा the green and white element in it as well, which are both the colors of hope and our country as well. Beautiful. और वही मेरा second question था rapid fire में, the logo. Who designed? How did it come to be? It was a freehand drawn logo actually. Right, amazing, very beautiful. Yeah, it's very warm as well. By the way, उसको देख के there's a feeling, sense of warmth with that mashkale. It's not edgy, Although, you know, soft. yeah, brand evolutions होती हैं, and every time I think about कि पता नहीं मैं लोगो को भी change करूंगी या नहीं, but this is one thing, मशले के अंदर the orange wall and the logo is never, inshallah, never going to change. अब मेरे पास मशले रहे या वो आगे किसी के पास जाए, जिस तरह अभी मशले चलता रहना चाहिए और मशले का लोगो भी वही रहना चाहिए. Amazing. Second rapid fire, ballpark, what roughly how much it takes in terms of investment to do the first launch? Let's बस first, वो घर में भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है आपका. How do you have a memory? और दोस्तों यारों के साथ मिलके हो गया? यार actually nothing. What it takes is asking for help. तुम चाय का बंदोबस्त कर लेना, तुम resources कर देना. It is the help. The figure is help. No numerical figure help. Yes, monetary आपकी चीज लगती है, वो जितना हो सकता है कर दें. कोई ना कोई और चीज उसके साथ बन ही जाएगी. अगर कोई चीज मिसिंग होगी, कोई कहेगा यार मेरे घर ये पड़ी हुई है, वो ले आएगा उसको. So stop worrying about कि क्या होगा. आपके पास अगर प्रिंटर है ना, तो उसके अंदर इंक कोई डलवा ही देगा उस चीज को चलाने के लिए. Amazing. बिजली का सॉकेट भी कोई प्लग इन करवा देगा जाके. So start asking for help and don't expect it कि वो it will come from familiar places. At times it will come from places you have least expected it. Wow. So there's no ballpark figure. आपकी जेब में 100 रुपए भी हो ना, तो जब आप सोच लो कि वो उस 100 रुपए से स्पेशली किसी की मदद हो सकती है, और नॉट ओनली कि 100 को मैंने 1000 में तब्दील किस तरह करना है, आप सोचिए वो 100 को मैंने 1000 में तब्दील करके बाकी समय किस तरह बांटना है. 10 लोगों के पास वो 100 किस तरह जा सकता है. और दैट इज द की हियर. Amazing. What a beautiful analogy. एक फिग बेक पे भी मिलता है काफी अदर स्टोर पे. इल कापो प्रिजर्व्स के फिग जैम्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी जैम्स होते हैं. ही केम ऑन द पॉडकास्ट. ही इज इन हिज थर्ड लास्ट स्टेज इन हिज लास्ट, इनके लिए जॉब लाइफ हो गई. अब उन्होंने कहा मैंने पैशन, हॉबीज, आई थिंक इज 50 प्लस. इज लाइक अब मैं हॉबी के लिए क्या करूं.
जीरो इन्वेस्टमेंट्स, अपनी फिक पकड़े खेत से, अपने बाहर बहुत ज्यादा अंजीरें लगती हैं तो बस पकड़े, खुद ही किचन में बना बना के 10-10 बोतलें करके देना शुरू कर दिए, दोस्तों को बेचा, आगे 50 बनाई, फर्दर बेचा, और ये ले विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, चलो जी बिजनेस स्टार्ट हो गया पूरा, अब मिल रहा है हर जगह, ज्यादा बन रहा है. So yeah, you're right. Actually, it takes passion. Number 3. वो First, yeah, हर go ahead. हरकत में बरकत है, बरकत खुद ही डल जाती है हर चीज के अंदर, जब दस्तरखान लगता है लोग भी आके बैठ जाते हैं. Wow, beautifully put. Third, rapid fire. First proper event of Mushgrave. What was it? How many people attended? Where was it? The first official Official. thing was official clay workshop थी. Clay workshop थी, or it happened at Mashale, the studio that you came to actually, and there were about 8 people in it. और अब माशाल्लाह 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 टच वुड, थैंक गॉड, मेरी दोस्त की अम्मा ने लकड़ी की ओरिजिनल चीजें रखी हुई अपने घर में, कि इट वाज टिल today there are days when we have to say that we are fully booked and we are sorry we cannot accommodate you today. Amazing, amazing, amazing. Within that first 8 people play workshop, what was the anxiety levels? Let's say कि 8 लोग आएंगे नहीं आएंगे, पैसे देंगे नहीं आएंगे, launch के लिए what was going on in that week? And what does it feel that first person who you don't know, no reference, no contact, nothing, or first few people, maybe 8 of them you didn't know or 5 of them you didn't know, who were those people and what was the feeling like कि जब unknown बंदे ने trust करके register कर लिया? The feeling was divine. I think मैं अब जाके सोचती हूँ ना तो मुझे अब I relive the feelings because उस time पे my sense of feeling anything was not there. I was still in the process of Right. trying to heal and feel it. So वो feelings I think वो इर्तिजा ज़्यादा बेहतर तरीके से, and people who were living that dream for me, who were building it for me, would say it better. लेकिन I remember because इर्तिजा बहुत ना तैयारी कर रहे थे. We have a refrigerator at Mashkale if you have seen. So उसके अंदर ना सारी बेवरेजेस आ रही थी, शिज़ान के जूस और ये सब कुछ. I was like on the house, like there's no money here और सब कुछ, and he was like कि no, सब हो जाएगा. He is this person who taught me कि करके सब रख लो, वो बढ़ेगा ही, वो खाली नहीं होगा, वो खत्म होगा और उसके अंदर और चीजें आएंगी, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल विल कम एज वेल. वो नहीं था कि वो इट्स अ गिव अवे या कोई इस तरह की चीज है. इट वाज द कॉन्फिडेंस. वो तवक्कुल का कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, कि बिलीव इन समथिंग सो मच कि वो हो जाए. एंड you know that feeling, but I know the feeling. एक feeling जो मैं आपको बताऊंगी, whenever I'm like, there have been days and nights and middays as well where I've been like मुश्किलें बंद करना है, मुश्किलें बंद करना पड़ जाएगा मुझे. LC sanctions लगती हैं since this is solely a community based studio, because there's no money generated out of it या कुछ. Usually there are days when you have to put in money to make it functional और सब कुछ. Since the day we started अब तक classes की price कोई change नहीं हुई है, they're the same. So questions like this, अगर आप सोचो ना economy के हिसाब से, the math doesn't math with certain things, but in life the math doesn't have to math for you. So उसके अंदर आपको एहसास होता है that कभी कभार ना दरवाजा वैसे ही खुलता है और कोई अंदर आ जाता है, and you're like कहाँ से इनको पता चला है या कुछ. और that is the feeling of तवक्कुल के सब कुछ अगर छोड़ दिया हुआ and you have brought it into existence, it will work. अगर वो आपके लिए नहीं काम कर रहा ना, वो किसी ना किसी के लिए करेगा काम. और उसका वो नहीं होता, एक सदका जारिया का भी तरीका होता है कि वो चलता रहता है, वो चलता रहता है, वो चलता रहता है. From where it starts, it comes back to it as well. So that keeps on going. So that Yeah, feeling, and there are a lot of feelings. There are feeling of people. I've seen people leave with laughter. I've seen people leave the studio with release or a workshop or a pop-up. With hugging someone that they have not known, with tears as well. Uh, so of self-confidence, with partners as well. There have been a few instances जहाँ लोगों people have found partnership at Majale as well. yeah. Then so you really need to take it to Karachi, right? But yeah. तो तो
नो हमारे अभी तक रफली लेट्स से इस वक्त हमारे अबाउट हमारा 2 months का एक कोहोर्ट होता है पूरा. देयर लाइव क्लासेस, देयर इज अ लॉट दैट गोज ऑन. सो 8 weeks का एक वन पर्सन ज्वाइन इन का 8 week की जर्नी होती है. तो नाउ वी हैव 100 people who have almost either graduated, actually 150 हो गए, who already either graduated और graduate होने वाले हैं फरवरी के अंदर. तो वी हैव अ लॉट ऑफ रियल टेस्टिमोनियल एंड सो मच. लेकिन आई रिमेंबर अक्टूबर के अंदर जब हमने पहला पहला जब शुरू किया था, ऑफ कोर्स मैं हर कोवर्किंग स्पेस में भी पाकिस्तान में गया हुआ था, तो मैं वहां पे टॉक्स दे रहा हूँ जा जाके, ताकि टू कन्विंस पीपल के व्हाट वी आर डूइंग इट विल बी रियल, लाइक देयर इज अ रियल पर्सन बिहाइंड इट. एक कोई आप वहीं पे पहले यू वैलिडेट द पर्सन दिस एंड दैट. लेकिन आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम अन अननोन पर्सन जिससे हम कभी नहीं मिले, जो मेरी किसी टॉक में भी नहीं था, व्हेन दे पे दैट registration fees and they like we trust you for the next 8 weeks, so that is a beautiful feel. like यार ये random बंदे ने trust कर लिया है, प्रॉपर बिल्कुल trust कर लिया है. एंड इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट. तो उसके बाद जब वो आते हैं, ऑफ कोर्स उसके बाद वो जब 2 महीने गुजरते हैं, वो बिल्कुल भी भूल चुके होते हैं व्हाट दे started with, because they have this long journey, they have learned a lot, they have bought, become part of the community. So they really love it. वो फिर आगे they stay on as alumni and so on. लेकिन that idea in a business, when you are starting the business, of any form of business, whether it's your, again same, your food product, your arts and crafts, your anything, uh, when you put your heart and soul in it, you stand behind it, you work. कोई इसमें rocket science नहीं है, but you're really out there, and you actually, when people start trusting you, that's the time when you start realizing that what you're doing is on the right path. So that feeling is always very divine. It is divine, and you talk about it very differently as well. You would see me talking about anything else, and I would be normal about it. I would be passionate and talking about it. But the moment you say, "आप मुझे कोई दूर से भी कह देना," so people who do not know my name, they have started to call me Miss Mashwale. You're Miss Mashwale, right? I for the longest time I was like, "Yeah, I'm not famous or anything," but I've started to realize people have started to recognize my face for coming to Mashwale and knowing it. And जब जैसे वो मशले की बात होती है ना, everything sparks in my world, my blood rushes, I started to glow कि ऐसे लगता है कि मैं स्किन रूटीन की है, रेटिनॉल मैं यूज कर रही हूँ, but it's not, retinol is important when you cross 30s में जब आप जाते हैं. लेकिन it is the fact that when you love something and you absolutely, it feels divine, the word divine, जब उसके अंदर वो divineness आ जाती है ना, सब अच्छा हो जाता है, सब गुलजार हो जाता है, सब खैर हो जाती है. आपका वो ऑरा चेंज हो जाता है आपकी सराउंडिंग्स में दूसरों के लिए भी. एंड इट्स जस्ट, मुझे कोई कहे ना कि आमना पेंसिल है और ये चीज़ है और ये वाली चीज़ है और इसके बारे में बात करनी है, आओ बैठ के बात करें, मैं बहुत अच्छी बात करूँगी, ठीक है. लाइक दैट इज द थिंग दैट आई हैव स्टडीड, वो सब कुछ, ठीक है. कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ मैं, उसके बारे में बात भी चलो मैं कहूँगी ये इससे बनती है सब कुछ. You tell me to talk about Mashwale and what Mashwale has done to me and to others, I would have stories and stories and actually, purposeful things to tell you about. There are just two things in life जिनके बारे में मैं दिल खोल के बात करती हूँ, और ये सबको पता है, वो मेरी नानी है जिनकी मैं आपको बेतहाशा स्टोरीज सुना सकती हूँ, और वो दूसरी चीज़ मशले है. बोथ द थिंग्स, कोई कहे वी ट्रीट मोमिना, फवाद, तारिक और लोग हैं, शबीर भाई हैं, कामरान भाई हैं, सब लोग. I've started to realize they don't see Mashale as a studio or a space. They see Mashale as a human. उनके लिए मशले का जो कॉन्सेप्ट है ना, इज अ जीती जागती चीज. मी बीइंग इट इन देयर और नॉट, फॉर देम मशले इज देयर्स. उनके साथ आप कभी कोई गलत बात करके देख लें, वो आपको ऐसी आगे से मशले के लिए खड़े हो जाएंगे ना, टू सेव इट एज वेल, कि नहीं, वी आर हियर. एंड नन ऑफ देम हैव एनी पर्सनल चीज उसके अंदर, लेकिन दे होल्ड ऑन टू इट लाइक इट्स एनीवन्स बिजनेस. सो वो डिवाइननेस आ जाती है आपके अंदर उस चीज Yeah, के साथ. so beautiful. What a beautiful bond. Second last question is rapid fire. Second last question. That one event, or could क्योंकि be a rapid one. fire नहीं हुआ, हमने तो इतना लंबा वो खींचा है. वो मेरे को पता है. आप आपसे आपके आंसर से अंदाजा हो गया कि जितना मर्जी वन वर्ड क्वेश्चन हो जाए, आंसर लंबा ही आने. So which is what we love. One could be a one event, or could be a month, like a time period of specific, where you felt that you have now crossed the inflection point because it was so big, better than what you expected, and now you are in here for the long run kind of feeling. I
I think that it would be people. So this person came to Mashale with a prescription, और उसने कोई वो नहीं लिया था. वर्कशॉप आपको ना बुक करानी होती है in advance, just because of safety and security issues और सब कुछ, ताकि हमें पता हो कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा. And also कि crowded now, there is a limit to people that we cater, ताकि उनको attention वो मिल रही हो. So there was this person who knocked. एक वर्कशॉप हो रही थी, वो आए और उस बंदे ने कहा कि यू नो आई हैव अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर मशगले. तो आई वाज लाइक प्रिस्क्रिप्शन, एंड आई वाज लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ फार्मेसीज डाउन अक्रॉस एज वेल, एंड आई वाज लाइक कि प्रिस्क्रिप्शन है कोई होगी. तो मैं गई और मैंने उसकी वो देखी, एंड आई वाज लाइक मुझे ना थोड़ा सा समझ नहीं आई, बिकॉज इट वाज एक्चुअली अ प्रिस्क्रिप्शन जिसके ऊपर मशगले लिखा हुआ था. And then she said that my psychologist told me that we are going to wean off you from your medication. And my doctor also suggested that for something that this person was taking as well. Apart from psychological medicine, it was to do with a medication, a proper thing that she was going through. And both of them equally have suggested to wean me off it, or uske liye they have said that you start going to Mashhad. That was the time that I had realized that, जो मैंने शायद करना था और जो मेरे से कायनात में कराया था, when I say this I'm getting teary eyed, has happened. And अभी मुझे recently कोई एक मिली खातून who has never been to Mashhale, but just imagine, जिससे आपने कहा ना, the sense of trust की हम लोगों ने बात की, कि उनसे मेरी मुलाकात हुई एट अ फ्रेंड्स प्लेस. शी वाज मेरे दोस्त की जानने वाली थी, और उन्होंने कहा कि वो अच्छा हाँ आप वो मशगले करती हैं ना और सब कुछ. मैंने कहा जी. मैंने कहा आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा कि आई एम साइकोथेरेपिस्ट या कुछ इस तरह करके उन्होंने बताया. आई अपोलोजाइज अगर वो ये सुन रही हैं. और उन्होंने मुझे अपना नाम बताया. मैंने कहा अच्छा. और उन्होंने कहा कि मैं बहुत से अपने पेशेंट्स वगैरह को रिकमेंड करती हूँ मशगले. मैंने कहा अच्छा वाओ, सो यू हैव बीन टू मशगले? उन्होंने कहा नो, बट आई ट्रस्ट द प्लेस. आई वाज लाइक this is what all I needed, or what Mashale needed. So I think that's it. That prescription was it. जिसने मुझे समझ आ गई थी कि from now on it is not looking back, it is just moving forward in whichever way. Trust the process and keep going with it, keep going on with it. Just keep trusting it. It will take you somewhere. अगर मैं इन वकास और फिरिया, आप माने ना माने, अगर मैं अब होम भी ना आना, अगर आई एम नॉट एसोसिएटेड विद मशगले, आई फील लाइक एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मशगले खुद अपने आप को आगे लेके जाना शुरू हो जाएगा. So this is the power of a community. This is the power of I love it. No, I totally love it. We're humbled. Yeah, that prescription. It's that story is so beautiful, so soulful, and that is why I literally got goosebumps. Yeah, I know. I literally got goosebumps. Now my last question, very different tangent. So social media, I love how Mashgile, of course, 30,000 plus followers we had, some reels work very well as well. How did you approach social media? What is your overall view to talking to other young, still upcoming founders in different places? How, in your opinion, what are some of the ways social media works? If in the reel form, what kind of reels work? If in non-reel form, what works? How have you been seeing social media so far? So when you say 30,000 plus followers, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ भी थोड़ा सा रखा है. So we lost 3 social media accounts since we started. Why is that? Why is that? Coming to this, saying that I come from a digital background और ये सारी चीजें, when you're working with social spheres which are digital, the web, you need to realize the content and the type of content that is going to the audience, and when you're a public profile specifically, okay? Not realizing there will be things that are reported as well, there glitches as well, they'll come as well, their engagement things as well, वो एक अलग factor है. तो हमारा जब पहली दफा account report हुआ था, वो बस ये था कि आप लोगों ने एक बात इसमें रखी हुई है और ये क्यों है, जबकि वो कोई बात भी नहीं थी. If you don't mind, can I say it here? It says a safe space for everyone, all identities. So there was this person who started to report the account. This person asked other people to report the account. It was reported. The second time,
around we were supporting Aurat March. हाँ Again, we support everything. सारे causes हो रहे होते हैं support उसके अंदर आप मचले के पेज पे चले जाएं सबको support हो रहा था and there was this definition कि this is it's March, it's the time for women and कोई माने इस बात को या ना माने हमारे मुल्क की खवातीन के अंदर बहुत टैलेंट है वो ग्लोबल लेवल्स पे जा सकती हैं आप किसी देहात से भी उठ के किसी खातून से कुछ कहें ना उसके पास एक आइडिया और उसके पास विल पावर बहुत होगी आप किसी पाकिस्तानी खातून को चैलेंज कर दें वो उस चैलेंज को ना एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देती है तो वो ये हो रहा था और वापस वो अकाउंट रिपोर्ट हुआ फिर देयर वाज समथिंग दैट वी पोस्टेड एज वेल एंड इट वाजंट अकॉर्डिंग टू द बायलॉज या कोई इस तरह की चीज वो हो गया कमिंग ऑन टू द फाइनल वो तो अकाउंट्स बहुत गए और वो ऑडियंस फिर खुद ही वापस भी आ गई we have never done influencer marketing या कोई इस तरह की चीज वो खुद ही organically वापस आई because it was an organic setup with selling a product being a service provider being a content person as well people need to realize this that they're different categories उसके हिसाब से content ही होता है ठीक है it does not mean कि मचले ने ये content बनाया तो आप लोग वो content same बना के लगा दोगे you would have to do your own tweaking to it yes you can take inspiration from each other but it needs to be valuable and insightful content होना चाहिए आपका and working on it just imagine it is अब सोशल मीडिया का जो डेमोग्राफिक्स है ना वो बहुत चेंज हो चुका है और उसका लैंडस्केप और इकोसिस्टम ऑल दीज वर्ड्स बिग वर्ड्स दैट वी यूज उनका एक मीनिंग ये कि इट्स नॉट जस्ट समथिंग दैट यू क्लिक ऑन इट इज एग्जैक्टली लाइक मुझे अभी पूरे वक्त और आपको ये फील आई है कि हम लोग साथ बैठ के बात कर रहे हैं you are representing someone who's right there brands have changed that people go on pages first and then they result into customers later on in footfall in original form ठीक है सो वो रिवर्सल हो गया है पहले होता था यू वुड गो टू आउटलेट यू विल चेक दिस और सब कुछ अब वो नहीं होता आप पहले आप वेरिफिकेशन देखते हो अच्छा ये है ये एग्जिस्ट करता है इसके रिव्यूज हैं इसने ये बात की और ये सब कुछ और फिर वो होता है सो द वर्ल्ड हैज कम्प्लीटली चेंज एंड सो हैज द कंटेंट विद इट एंड द कंटेंट प्लेटफॉर्म जिस पे वो चीज़ें जारी होती हैं दैट हैज चेंज्ड एज वेल मैं आपको मशहूर की एग्जांपल देती हूँ गो ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज गो ऑन आवर फेसबुक पेज देयर इज अ मैसिव कंटेंट डिफरेंस दैट यू विल सी देयर ठीक है फेसबुक पे वी आर नॉट दैट एक्टिव एज वेल क्योंकि हमें पता है कि जिस द कम्युनिटी दैट अंडरस्टैंड्स अस वो जो फेसबुक वाली भी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी और वो यहाँ से बिल्डअप होती रहेगी वी आर एक्टिव देयर द वेबसाइट इज वेरी डिफरेंट एज वेल सो ऑल प्लेटफॉर्म्स दे हैव द सिंक इन इट बट दे वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फॉर द ऑडियंस दैट दे कैरी एंड देयर केटरिंग टू एज वेल बिकॉज वो है दरवाजा जब घर का खुलता है अब उसके अंदर डिफरेंट कमरे हैं ठीक है हर कमरे के अंदर डिफरेंट चीज है it's exactly like that कि every room is for a different purpose and वो उसी घर का हिस्सा लेकिन it is put in a different way as well and for everyone please the world is changing and the world does not need filters anymore so stop like polished चीजें अच्छी रहती हैं लेकिन closer to life चीजें people want to see what actually is happening those brands those setups those startups are also working out who actually show you the true meaning of life जिसके साथ आप resonate करते हो और आप कहते हो यार मैं ये this is me I would want to sit on this sofa yeah I would want this pillow under my head as well सो rawness इज द फॉर्म रॉ ये भी बहुत ज्यादा नहीं कि आप किसी को आई ग्लिच होना शुरू हो जाए कि वो बार बार अपनी आईज को ब्लिंक करे वो देखते हुए उसको अनॉय हो कि सितारा यहाँ से यहाँ सितारे वाली आपकी रेफरेंस क्यों है इट नीड्स टू बी polished and put in a certain way but please start using things that are आपकी जिंदगी का एक रोज मामूल का हिस्सा है and not to hide away from it और जब कुछ नहीं हो रहा होता तो इट्स फाइन फोर्स करने की जरूरत नहीं है वी सी ब्रांड्स एंड वी सी सोशल मीडिया आज तक व्हेन आई से ब्रांड्स आई मीन ऑल सर्विस प्रोवाइडर्स एंड एवरीवन नॉट के मैं किसी एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रही हूँ वी सी के फोर्सफुल चीजें लग रही होंगी ठीक है एज सिंपल एज ईद मुबारक ठीक है वो एट टाइम्स आपको ना आपके साथ रेजोनेट कर रहा होता ठीक है लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि उनके सबने लगा दिया यार मुझे बहुत आपको कहना चाहिए ईद मुबारक सबको लेकिन आप एक्चुअली जिंदगी में जाके और उन लोगों से ईद मिले
पेज पे नहीं लगाएं, इट इज ओके, यू डू नॉट हैव टू पुट द स्टार एंड द मून एंड से ईद मुबारक. Yeah, you have given honestly in 5 minutes almost like a masterclass for Instagram, and I think एक तो आपने जो first part में share किया था, that is very important. You पाकिस्तान की reality, and I did not know yet कि अगर ज्यादा इस तरह की चीज पे ज्यादा रिपोर्ट करें तो आपको मौका ही नहीं मिलता. फेसबुक पे इंस्टाग्राम खत्म कर देता है. I did not know that. This is so bad यार. मतलब Instagram, it takes approximately एक number of people है, अगर वो उतना रिपोर्ट कर दें तो आपका पेज फ्लैग हो जाता है. और इसी वजह से मेटा was also introduced and verification जो आप आती है वो introduced ताकि आप रिकवर कर सकें अकाउंट. लेकिन उसके अंदर भी अकाउंट रिकवरी के चांसेस हैं लेकिन कम है. Right. Yeah, and I think I don't have the data on the ground, but I hope, actually I don't think, I hope कि Pakistan becomes more inclusive for everybody, and इस हर चीज पे रिपोर्ट ना करने लग जाए. यार आप एक क्लास को नहीं सपोर्ट करते तो ना करें, लेकिन रिपोर्ट तो ना करें, अगले को तो करने थे वो तो. नहीं, उसके बाद फिर जब वो पेज बंद हो गया और मैं गम में बैठी हुई हूँ कि अब उनका तो लाइफ ही खराब हो गया, बटर लाइफ ना हो गया मेरे लिए, सब कुछ हो रहा है मेरी जिंदगी में. बट नहीं. किसी की कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा आप डिफाइन करें अपनी इस लाइन को. मैंने कहा मैं क्या डिफाइन करूंगी, सबके लिए, सब लोगों के लिए, सारी एजेस के लिए. यू डू नॉट, यू आर अ मेजॉरिटी और अ माइनॉरिटी, सबके लिए, जो मर्जी इंसानों के लिए. आप मेरी तरफ से आप अपना पेट भी ले आए, ठीक है, सबके लिए. मैं क्या नहीं, आप वो बात है ना, आप रंग को ढंग किस मीनिंग में उसमें रंग डालें या कुछ. मैंने कहा यार आप ना आए मेरी तरफ से, इट्स ओके. I think your best answer would be this. It's for all identities, men, women, and your pets. That's what we meant. Bring your cats and dogs. That's all we meant. That's all we meant. And uske baad yeah, I think you're very right. For everybody here as well, people are actually trusting a certain brand by how authentic the social media is. Of course, if it's beautiful, it's creative, then it works. But with that authenticity, वो बिल्कुल जो कैनवा पे बने बनाए posters होते हैं, guys, they don't work. That is gone. सेकेंडली, जब आप किसी की रील आइडियाज कॉपी कर रहे होगे तो आपको व्यूज आएंगे. व्यूज आ जाते हैं अभी भी बिकॉज आइडिया स्टिक. But always make sure, especially if you're founders, or you want to become a founder, you want to have any of your passion turn into something that people can trust and pay for in the future, then always make content for your buyers, not for the views. It's a very different world out there. 1,000 people who trust you, who are your buyers, will actually be जो आपका पूरे एक साल के वो कस्टमर्स बैठे हुए हैं. 1,000 बंदा, चाहे आप 5,000 रुपीज की चीज दे रहे हैं या 5,000, तो खैर 1,000 की तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, दैट्स 50 लाख. बट अगर आपके 2,000 की भी चीज है, सो दैट इज योर ये एंटायर ईयर ऑफ बिजनेस का रेवेन्यू है. इफ यू ट्रस्टिंग दोस 1,000 पीपल एज योर बायर्स, आप उनके साथ एंगेज कर रहे हैं. बट अगर आप इधर उधर से रील्स कॉपी करके कर रहे हैं तो आ जाएगा, कहीं ना कहीं व्यूज आ जाएगी, लेकिन बायर्स नहीं आते बिकॉज द कंजम्पशन इंडस्ट्री इज स्लाइटली डिफरेंट देन द पीपल हु ट्रस्ट योर ब्रांड. So showing the brand behind it, the trust, the value of the brand behind it within your reels and content, what you do, take them behind the scenes, take them. मशकिल का अगर आपको स्टूडियो की वाइब आ गई है रील में, तो of course वो एक psychologically you start trusting it, what is behind the scenes that happen, and the people also. That also really helps. Amna, you were an absolute masterclass. It was so beautiful. We had so much fun, and after the entire day, क्योंकि हम भी नाव से शुरू हुए होते हैं, and this was like 7 p.m. we were starting, and then having this late, like so much energy built up by this. So I think Amna, you just made our day, made our week. Thank you so much for sharing. For everybody, where can they find you? It's मशकिले का handle कौन सा है, या website क्या क्या है? मशले आप टाइप करें तो हम मिल जाएंगे आपको. उर्दू में टाइप कर लें, इंग्लिश में टाइप कर लें, मशले के नाम से एक ही अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल आ रहा होता है अभी तक. हमें भी रिपोर्टिंग करनी आ गई है, ठीक है, अब मेरी डिजिटल की डिग्री काम आ रही है. सो मशले का हैंडल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और आप गूगल पे भी लिखेंगे मशले तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा. इफ यू डू नॉट हैव सोशल मीडिया अकाउंट, देन यू आर ब्लेस्ड, यू आर स्टिल लिविंग द लाइफ. आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय यू. तो आप हमारे नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और या तो मैं ही आपको जवाब दे रही होंगी या मेरी टीम में से कोई ना कोई जवाब दे रहा होगा. और अगर आपका ये सवाल है
is it a safe space? तो आए और जाने. It is a safe space. If it's a safe space for me, I would welcome you to my home only if it's home to me. So if I'm welcoming you to it, then it is a safe space for you. And if it's for all identities, that's the question. तो हाँ भाई, नानी दादी अम्मियाँ जिनकी आइडेंटिटी वो अपने नाम भूल जाती हैं, उनकी आइडेंटिटी नानो दादो मामा बन जाती है कि उनका असल नाम किसी को याद ही नहीं होता, कि मोबाइल पे सर्च करते हुए भी हम इंस्टाग्राम या सोशल हैंडल्स पे भी उनका नानो लिख रहे होते हैं या मामा लिख रहे होते हैं. इट मस्ट हैव हैपेंड विद यू. So it means that it's for everyone. It's for your dads, it's for children, it's for everyone, regardless of their religious or economic classes that they come from. It's for everyone. So please आएं. और आप लोग फरीहा, आपको भी आना है, और वकास आपको और जोया को भी वापस आना है. Amazing. Everybody, I hope you guys enjoyed it. If you've been listening to it, my ring light has started to flicker at the right time. Everybody, if you've been watching it on YouTube, thank you for staying with us. I hope you loved Amna's vibe as much as we did, and do experience what she had in store. If you have consumed it on the audio, you can always find the case study of it as well, with some highlights here and there on kabil.school as well. Throughout the year, we'll keep sharing and keep bringing it in your inboxes as well. So you keep getting inspired. Every time you're in different stage of your business or your life, you can refer back, and there will be something within this podcast that will appeal to you. And that is what our hope is. Let us know, of course, at kabil.school or at kabil.school about how you liked it, what did you like it, and once you visit Mashkale, do tag Mashkale and Kabil so we can all then give it a shout out and send you a brownie as well for attending it, and that would be on us, Kabil. Amna, again, thank you so much. How was the experience? It was really nice. I loved it. ऐसे लग ही नहीं रहा था, मुझे लग रहा था आप लोग यहीं बैठे हुए मेरे पास. वो नहीं होता, वॉइस नोट आता है और वो इतना लंबा होता है कि आप आगे से जवाब देना शुरू हो जाते हो उसको. ये वो वाली मिसाल थी कि it just felt like home. Or it felt like I was at home as well, and it felt like home. So thank you so much. It's not always easy to talk as well. लोगों को लगता है कि इसको बोलना आता है तो ये बोलती जाएगी. No, it's not. At times I am at loss of words as well, and feelings as well. It's also कि आप इतनी ज़्यादा दिल की बातें और इतने खुल के बात भी बहुत कम लोगों से कर सकते हैं. So thank you so much for having me, and I did speak my heart out, and I did put Mashkale forward with all my heart and soul for the world and for you guys here as well. Amazing.